ठीक है, लेट अस स्टार्ट. अच्छा, आई वाज बेसिकली टेलिंग यू अ वेरी गुड इवनिंग अगेन. ठीक है, I was basically telling you, I was giving you the importance of doing reverse engineering. Okay, what is reverse engineering? Engineering, if I'm talking about, is basically having two of the words. That is, reverse basically means you have to do the back process, and if I'm talking about, you have to do back process, okay, plus with analysis. Okay, for example, I can see that there are 3 or 4 faces who are not there in the today's class. Okay, so what you do, you try to attempt the question first, and then see the analysis that which of the topics you were not able to do. Able to understand? ठीक. For example, I basically told you you are attempting history का part. ठीक. History से आपने क्या, for example, you have taken out 20 question or 25 question, whatever is the case. ठीक. Suppose, ठीक है, 25 questions का test था, and out of these 25 questions, you are able to do only 4 to 5 questions. Only 4 to 5 questions. Able to understand? So now you basically know that there are 20 topics that are left. 20 topics that are left that had to be done again. ठीक है, so now what you will be doing, you will be going back to the books and then read these 20 topics. समझे? ठीक है, this exercise will be taking 6 to 7 months. This is not easy. Why? Because it requires a certain kind of mental temperament, but over the period of time, you will be developing that kind of understanding that you can do any of the question paper without even reading. टाइम लगेगा, याद रखना, बट ज्यादा सस्टेनेबल यही वाली अप्रोच है. शुरुआत में मैंने क्या बोला, नॉट ओनली एफर्ट बट इट विल आल्सो बी रिक्वायरिंग योर मेंटल टेम्परामेंट. मेंटल टेम्परामेंट कैसे हो सकता है? नेगेटिव में मार्क्स आ जाए, वेरी मच पॉसिबल. ठीक है, बट एट दैट टाइम यू शुडंट बी क्या लूजिंग होप. एंड देन अगेन, अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल, इन द वेरी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट यू हैव क्या बेसिकली गॉट 20 क्वेश्चंस, ठीक, दैट यू हैव रेड. नेक्स्ट टाइम इफ देयर विल बी क्या 25 क्वेश्चन का टेस्ट, ठीक, surely there will be a certain the topics which you have read. ठीक है, so now if you are able to do 4 to 5 question in the second of the attempt, you will be able to do क्या around 6 to 7 question as correct, and then you will be getting around I will be saying that is 17 to 18 questions that you basically don't know. फिर से क्या करोगे, इसे पढ़ोगे, and then again do the test. In this of the manner when you are doing it ना, धीरे धीरे देखना आपके मार्क्स का लेवल बढ़ता जाएगा. ठीक, और अगर आप पढ़ के टेस्ट देंगे, अच्छा देखो, that is my personal approach. ठीक, there may be a certain other people who might criticize my approach. हो सकता है, why? There are n number of the ways that are out there, but in order to reach the goal, that is personally, ठीक है, personally अगर मैं बात करूं, मुझे पहले से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई नहीं. क्यों? आबरा का डाबरा गिली गिली छू करके आपको क्या कुछ भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं. So be ready in order to even क्या answer the unknown question. जब तक आप आंसर अननोन क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका प्रीलिम्स निकलना नहीं होगा. प्लीज रिमेंबर. ठीक, तो अगर आपका अगले दिन टेस्ट है, यू हैव टू रिवाइज दैट डे क्लास आल्सो. ठीक, as well as try not to miss the class just because of a test, because class is even more important than test. याद रखना ये. I still remember, है ना, you might be saying something कि सर क्या अपनी बढ़ाई चढ़ाई करके बता रहे हैं. I still remember I was basically was in one of the premier institute. I was preparing for ITJ का examination. Okay? And in those of the days, I used to go to the school on Saturdays, and I used to go to the institute on Saturdays and Sundays. That is, weekend batch was there, है ना. ठीक. At that time, I still remember that I got CGPA 10. ठीक है, and that year, if I'm talking about, I basically got a certain kind of certificate by क्या Kapil Sibal. ठीक है, कपिल सिब्बल का एक सर्टिफिकेट था that you have performed exceptionally well. ठीक है, they had basically given the certificate to the school, and they basically wanted to make such some sort of fanfare, है ना, कि our school का student has basically achieved something. ठीक है, so there has to be certain kind of क्या big of the ceremony, है ना, 4 लोग फोटो खिंचवाए. ठीक है, principal will be presenting that, they will be publishing that in the poster, है ना, इस टाइप का. They basically wanted to do that, है ना. And if you don't क्या believe me, I will show you that certificate also, है ना. And I still remember my principal ma'am called me. Principal ma'am मतलब क्या? If I'm talking about my vice principal ma'am, ठीक है? My vice principal ma'am called me, आजा यार, ठीक? And she said, है ना, to my mother, पहले क्या मुझे बोला कि समर्थ, अच्छा, why? Because I have changed the school after class 10. So in class 11th, I was basically क्या in some other school, and they were basically saying that you basically have to come to the facilitation ceremony for that kind of thing, है ना? पहले मुझे बोला, मैंने मना कर दिया, ठीक? That I will not be क्या going to that of the ceremony. Why? Because I will miss my class. Okay. Then she basically called my mummy कि probably she will be having certain of the control over me. शायद डांट डपट करके she will be sending me back. Okay. उन्होंने, मम्मी ने मुझे बोला, मैंने मना कर दिया. ट्रस्ट में ये हुआ है. ठीक है,
ऑलवेज कंसीडर योर क्लास टू बी सम सॉर्ट ऑफ क्या डिवाइन थिंग. क्लास मत मिस किया, ठीक है, क्लास बिल्कुल मत मिस किया. और मजाक नहीं कर रहा ये, ठीक है, ये हुआ था मेरे साथ. एंड दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग एट दैट टाइम. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई वुड हैव गॉट अ हाइब्रिड बैच एट दैट टाइम, प्रोबेबली शायद मैं कर भी देता, प्रोबेबली, आई एम नॉट सेइंग दैट, प्रोबेबली, ठीक. बट उस टाइम पे क्या ये सारे हाइब्रिड बैच का स्कोप था नहीं. एंड इफ यू आर क्या मिसिंग वन क्लास, you are not missing only one class, you are rather missing क्या 5 to 6 classes that will be in continuation of that class. मजाक नहीं करे, होता है, ठीक है. सो टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? क्लासेस, then your revision, then your practice by your own, and after that comes your test. ठीक है, सो याद रखना फ्रॉम द नेक्स्ट ऑर्डर. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. बोल क्या हुआ भाई, है ना, बता दियो भाई से तस्वीर. ठीक है, अच्छा चलो. अच्छा, अगर मैं बात करूं इन दिस ऑफ द क्लासेस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वी बेसिकली वर डीलिंग रिगार्डिंग क्या इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस बढ़ रहे थे. ठीक है, दैट इज एंटायर ऑफ द नेशनलिस्टिक फ्रेमवर्क. अच्छा, ठीक ठीक. आई गेस इन द लास्ट ऑफ द क्लास वी बेसिकली हैड अ डिस्कशन ऑन हाँ एग्जैक्टली, ठीक. हम क्या कर रहे थे, दैट इज रॉयलैट एक्ट. ठीक है, रॉयलैट एक्ट पढ़ रहे थे. रॉयलैट एक्ट के ऊपर क्या, लेट अस डू अ 4 to 5 minute ऑफ रिवीजन एंड आफ्टर दैट विल बी स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. ऑल गुड एंड मोल. रॉयलैट एक्ट. तब एट दैट टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, देयर वाज नो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. उस टाइम पे क्या होता था, एचआरडी मिनिस्टर टाइप क्या ये लोग होते थे ना, तब बोलते थे कपिल सिब्बल यूज्ड टू बी. कपिल सिब्बल इज बेसिकली नोन इन द हिस्ट्री. व्हाई? बिकॉज़ ही हैज ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म एंटायर ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, दैट सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन. ठीक है, जिसमें क्या देयर वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम in class 10th का examination. Right now there is a grade or something else. Again back to the percentage. At that time if I'm talking about, he tried to transform entire the system. ठीक है, so that was our first batch. Second batch if I'm talking about है ना, ठीक, जिससे क्या उसका grading system implement हुआ था. अच्छा नहीं था, ठीक था, because at that time ना people क्या lot of students were basically committing suicides, है ना. ठीक है, क्या, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता था. if you are क्या not able to get the science then suicide, है ना, ये नहीं मिला तो suicide. So suicide was trending at that time, है ना. In order to curb that thing, they basically divided the people in blocks. That is one block of 90 to 100, other block of क्या 80 to 90. In this of the, so grading system was basically क्या to curb out strict competition and rather क्या people should be क्या focusing on particular blocks. That's why क्या grading system was there. अच्छा, if I'm talking about the Rowlatt Act के ऊपर क्या दो चार चीजें you please remember. In the last class I have discussed regarding the Rowlatt Act. ठीक, what was basically a Rowlatt Act? I basically told you it was क्या anarchical and revolutionary crimes act. क्या anarchical and revolutionary crimes act. Able to understand? Anarchical and revolutionary crimes act. But this entire of the act was basically framed by whom? That is Sidney Rowlatt. And as a result of that, this entire of the act was basically called as your Rowlatt Act. So this was your layman term. And if I'm talking about anarchical and revolutionary crimes act, that was basically your exact of the term. Able to understand? अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं दूसरी चीज that you basically have to remember regarding this thing. I told you that this of the act was basically passed in order to curb the anarchy condition that was basically developing at the time of your First World War. ठीक है, that I also told you. ठीक है, in order to counter what, that is the happenings that were basically taking place after during the First World War. ठीक, अच्छा, ठीक. When these other things were basically happening, I told you why the people were basically protesting against this of the act, because it was majorly being relying on the concept of na vakil na dalil सीधा jail. That is without any judicial without going through any of the judicial process, a person can be directly sent to prison, and that was highly exploitative on the part of people of India. Able to understand? ठीक, अच्छा. Then if I'm talking about, I basically told you that this entire of the thing basically led to one of the very infamous incident. I'm not using the word famous, I'm using the word infamous. ठीक, infamous basically means there was an incident of Jallianwala Bagh massacre. बताए थे जलियांवाला बाग. ठीक, अच्छा, what basically happened on Jallianwala Bagh? ठीक है, that is
On that day, it was the day of Baisakhi. Everything I basically told you, but this is a kind of quick revision. Okay? On the day of Baisakhi, when people were basically they basically came together in order to have a certain kind of I will be saying yes, to raise a voice. Because अच्छा दो नाम यार यहाँ पे याद रखना. I have not told you regarding this of the point. Saifuddin Kichliu, ठीक है, Saifuddin Kichliu and Dr. Satyapal. Write down two of the names. Saifuddin Kichliu and Dr. Satyapal. Okay, Saifuddin Kichliu and Dr. Satyapal. Okay. When I am saying that is, in those of the time, these are the people had basically were arrested, and these were basically certain of the public figures. There was a lot of public belongingness for these two people, okay? And they had been arrested during that time only. Okay? When these of the people were basically arrested, it was basically a kind of I will be saying as a catalyst for the people to come together and have a certain kind of discussion over what is basically happening in the society. Able to understand what is basically why the people are getting arrested. And as a result of that, on the day of Baisakhi, okay, on the day of Baisakhi, a lot of the people basically came in order to obviously celebrate Baisakhi. But obviously, if I'm talking about whenever I'm saying कि आपका कोई religious affair होता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं that we are only talking about religion. There are a certain kind of other discussion we are also doing, ठीक है. So on that day, if I'm talking about people were also talking about the government policies, okay. And government had basically passed certain of the laws through which if I'm talking about public gathering has to be restricted, okay. Not more than certain of the people should be meeting at one place. Able to understand? अच्छा. इसके बाद मैंने आपको दो नाम बताया था. बेसिकली टोल्ड यू टू ऑफ द नेम, दैट इज योर रेगिनाल्ड डायर एंड माइकल फ्रांसिस डायर. ठीक. I basically told you in this of the thing that there is a lot of confusion कि भैया कौन से डायर थे. ठीक है. अच्छा, तब मैंने आपको बताया था दैट इज द रेगिनाल्ड डायर और बेसिकली वाज दैट ऑफ द पर्सन हु बेसिकली ऑर्डर्ड द शूटिंग. ठीक है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या माइकल फ्रांसिस और डायर, इसमें याद रखना देयर इज डब्ल्यू दैट इज आउट देयर. ठीक है. ठीक है. ठीक. So at that time, if I'm talking about, this was the person who was the LG of Punjab at that time, that is Lieutenant Governor. Okay. Till this point, I have told you in the last of the class. Okay. Now I will be proceeding further. ठीक. अच्छा, start करते हैं. Let us start. ठीक. अच्छा. Please write down. Rohit is typing something. Rohit, क्या हुआ भाई? Any doubt? रोहित राज नाम अच्छा लगता है ना. क्या हो गया कोमल, तो इतनी खुश क्यों है? अब ठीक है कंचन. हाँ. तो सर जब क्या, हाँ, तुम दुखी नहीं होती क्यों? सर एलजी और गवर्नर में क्या फर्क होता है? चलो ठीक है, बात कर लेते हैं. ठीक. अगर मैं आज की बात करता हूं, ठीक है. In today's context, if I'm talking about, you will be finding that there are two of the names that are out there. ठीक. आप सुनते हैं क्या? LG नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड. यू आर क्या बेसिकली क्या आज के कंटेक्स्ट में बात करूंगा. क्यों? क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में इट इज क्या मोर इंपॉर्टेंट. ठीक. If I'm talking about LG, that is Lieutenant Governor, and if I'm talking about the other person, that is Governor. ठीक. अच्छा एक बात बताओ यार. If I'm talking about that there are certain of the constitutional posts. तो कौन सी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आपकी? एलजी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या गवर्नर है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. एलजी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. अच्छा, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? यश क्या मतलब मैं क्यों बोलता हूं कि कोई पोस्ट इज बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? हम बोलते हैं ना इन द पब्लिक डिबेट यू माइट बी सेइंग ये क्या संवैधानिक पद पे इंसान है. हाँ नहीं. अनमोल कैन आंसर, दैट इज व्हाई आई एम नॉट आस्किंग हिम. राहुल नहीं. Exactly, simple. Take any of the post is a constitutional post if that post is basically mentioned in the constitution.
ठीक, सिंपल, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट ऑफ द डिफरेंस दैट इज बेसिकली बिटवीन योर एलजी एंड गवर्नर, ठीक, is that governor is a constitutional post and LG is not a constitutional post. It is not mentioned in the constitution. Able to understand? अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूंगा, so I will be saying if I am talking about the autonomy, ठीक, अगर मैं बात करता हूं if I am comparing the power structure of both LG as well as if I am talking about the power structure of governor, I will be saying that LG has relatively more powers than your governor of a state. ठीक, LG is having relatively more power than the governor of a state. अच्छा, LG आपको यूजुअली कहां पे मिलता है? If I'm talking about ना, ठीक, yes, ठीक, if I'm talking about UTs में you will be क्या getting LGs और there का sometimes क्या basically क्या called as administrators, ठीक है। For example in Delhi if I'm talking about ना, we are basically having LG, we are not having governor, we are having lieutenant governor who is considered to be the representative of the president of India in that of the place. ठीक, मैं क्या बोलता हूं कि भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नाम क्या नुमाइंदा है, ठीक, ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर पर्टिकुलर ऑफ द पोजीशन, ठीक। अच्छा, when I am saying that he will be having certainly more powers, ठीक, why? Because there will be certain kind of domains that will be क्या restricted for his decision making. जैसे अगर मैं बात करता हूं, ठीक, in if I'm talking about in the region of Delhi, you are basically having क्या land, services and police, ठीक है। लैंड, सर्विसेज एंड पुलिस की अगर मैं बात करता हूं, सो दीज ऑफ द थिंग्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर बेसिकली क्या आर अंडर द डोमेन ऑफ एलजी, ठीक है, ठीक, हाँ, मतलब लैंड एंड वो पुलिस उसी में आ गया, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर ऑफ द थिंग्स दैट विल बी आउट देयर, दैट इज क्या ये आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसमें ही बेसिकली हैड टू क्या he basically had to give the decision based on the advice of your council of ministers, ठीक। और गवर्नर क्या होता है? गवर्नर विल बी क्या अपॉइंटेड इन द स्टेट, दिस और द पर्सन दैट इज एलजी विल बी क्या आउट देयर फॉर द यूनियन टेरिटरीज, ठीक। गवर्नर कहां पर होगा? स्टेट में। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नर, यस, गवर्नर विल बी हैविंग फ्यू ऑफ द डिस्क्रिशन, कैसे कि इफ ही इज बेसिकली क्या थिंकिंग दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट हैविंग क्या मेजॉरिटी, ठीक है, इफ सो ही कैन बेसिकली क्या कॉल देमसेल्फ टू प्रूव देयर मेजॉरिटी। एबल टू अंडरस्टैंड? क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक, ऑल गुड। इसका भाई एक बार बुलाकर लाइयो। हाँ यार, इसका ना लाइट ज्यादा है तो रिकॉर्डिंग में लाइट बहुत ज्यादा है। अच्छा, इज दैट गुड रोहित? एबल टू गेट योर आंसर? यस सर, थैंक्स, ओके। भाई यार ये वाला बोर्ड कैसे खुल गया? इसको वो कर, समझ गया? वो नोट 5 मुझे खोलना है, बंद कैसे करूं इसको? वहां से शटर डाउन कर देना इसका साइड से। अरे वीडियो में आ गया, रुकना वहां से। Just wait a second, everyone. ठीक, ओके, हाँ, तो क्या पूछ रही थी यार शवन्या? हाँ, हम लिखते लेफ्टिनेंट है, बोलते लेफ्टिनेंट। स्टेट में, हाँ, ठीक। यस, आई बेसिकली टोल्ड यू लैंड, सर्विसेज एंड योर पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, दैट इन दोज ऑफ द मैटर्स ही इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस, ठीक है, हाँ, ठीक है। और लेकिन बाकी में इसको क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुननी पड़ेगी। नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिफरेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज बेसिकली हैविंग अ बंच ऑफ एमएलएस दैट आर आउट देयर, ठीक, जिसमें हाँ हाँ उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ना कि यूनियन की, ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, कमिंग बैक टू योर हंटर कमीशन। अच्छा, एक देखना दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर जलियांवाला बाग मैसेकर ना, ठीक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर,
in that, in order, see, something bad has basically happened in the society, and in order to fix that thing, I will be saying that is there has to be certain kind of investigation. There has to be certain kind of investigation. And when I am saying there has to be a certain kind of investigation, obviously in today's time also क्या होता है भैया, हमने क्या कमेटी बना दी, हमने क्या कमेटी बना दी, ठीक, कमेटी बना के दे आर बेसिक, अच्छा हम बोलते हैं क्या कि कमेटी बना दी, बट ऑब्वियसली दैट कमेटी इज ऑलवेज क्या गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है. सिमिलर वाज द केस ओवर दिस टाइम आल्सो, ठीक. They basically constituted one commission to see that whether whatever has happened in Jallianwala Bagh massacre, ठीक, that was basically unjust or not, ठीक, that was basically unjust or not, ठीक. So इसमें अगर मैं बात करता हूँ, you are basically reading about one of the committee that is out there, and that is क्या called as your Hunter Committee, Hunter Commission, ठीक. You are basically क्या reading about हंटर कमीशन. अच्छा, ये हंटर कमीशन क्या था भैया, जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है ना, व्हेनेवर यू आर बेसिकली नेमिंग दीज ऑफ द कमीशंस, ठीक, पर्सन हु इज प्रिसाइडिंग इट, ठीक है, उसके नाम पे वी आर बेसिकली नेमिंग दीज ऑफ द कमीशन, ठीक. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या हंटर कमीशन, आई विल बी यूजिंग दैट इज द पर्सन हु वाज बेसिकली प्रिसाइडिंग दिस एंटायर ऑफ द कमीशन वाज योर विलियम हंटर, ठीक, वाज विलियम हंटर. Able to understand? And in his name, if I'm talking about William Hunter के क्या टाइम पे आपका आया क्या हंटर कमीशन, ठीक. इससे यार एक क्वेश्चन बनता है, ठीक. There is one very popular question that is basically getting framed from this of the topic. अच्छा, क्या क्वेश्चन होता है? That is name the Indians who were basically the part of this Hunter Commission, ठीक. तो इससे एक चीज याद रखना, that is, ठीक, you are all क्या preparing for your PCS, that is PCS, ठीक. PCS के नाम से क्या आप याद रखना, even if you are forgetting the entire of the name, at least you should be remembering the initials that were basically your PCS, ठीक. तो if I'm talking about क्या P से आ जाएगा पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण, ठीक. C से if I'm talking about चिमनलाल हरिलाल, चिमनलाल हरिलाल. Able to understand? And if I'm talking about S से, ठीक है, सरदार साहिबदीन सुल्तान अहमद, ठीक, सरदार साहिबदीन सुल्तान अहमद, सरदार साहिबदीन सुल्तान अहमद, ठीक. These three of the people, if I'm talking about, were basically क्या were the Indians who had basically been given in the membership of Hunter Commission. That is, there has to be certain of the Indian members who must be out there, है ना. तो याद रखना these three members, Indian members, were also there. साहिबदीन सुल्तान अहमद, सरदार साहिबदीन सुल्तान अहमद. क्या हो गया यश, क्यों रो रहा है भाई, कुछ हुआ कैसे चौधरी साहब, क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, इतना खुश क्यों है कंचन, हाँ, इतना खुश क्यों है तू, खुशी रहता है. अजय शबन्या इतनी खुश क्यों है तू, अरे उल्टा क्यों बोल रही है, तू खुश क्यों नहीं रहती. हाँ, कभी कभार क्या हमारी क्लास में खुशी है. अच्छा अच्छा, चौधरी साहब, हाँ, चौधरी साहब तेरे ऊपर है नाम, चौधरी साहब इज बेसिकली शूटिंग, है ना. हाँ, ये चौधरी साहब बढ़िया नहीं लग रहा, चौधरी साहब, हाँ, मस्त लग रहा है ना. अच्छा, देयर इज अ थिंग, है ना, वी ऑलवेज के यूज्ड टू से दैट इज, अच्छा, इवन इफ आई एम क्या टेकिंग द केस ऑफ माय मदर ना, है ना, शी नेवर यूज्ड टू कॉल माय फादर बाय हिज नेम. किसी की नहीं कहती क्या, हाँ, नहीं, आज के तो बोल देते हैं ना, आज के लड़के है ना, है ना. अच्छा, तेरी मम्मी नहीं को बुलाती नाम से, है ना, तो क्या बोलती है, वो बता दे. अच्छा, कुछ तो बता, अजी सुनती हो, हा? तो क्या बोलते हैं, तू क्यों शर्मा रही है, हा? क्या, तू क्यों शर्मा रही है, ये तो नहीं, मतलब वो तो ठीक है, तुझसे थोड़ा पूछे तू क्या बोलेगी, हाँ, कुछ नहीं बोल. अच्छा कोमल तू बता दे. अच्छा, तो तुझे भी नहीं पता, कोई शेयर करना चाहेगा, आई विल डेफिनेटली शेयर व्हाट माय मदर यूज्ड टू क्या कॉल माय फादर.
कुछ अगर मान लेके किचन में है और पापा क्या तेरे क्या बालकनी में है, what do you people क्या यूज टू क्या? अच्छा ऐसे नहीं होता? अच्छा विमली, इज दैट आल्सो द केस विद यू पीपल? है ना? she never used to क्या call, हाँ, what does she how she used to क्या call him? हाँ नहीं नेम, अच्छा दैट इज अ निकनेम. हाँ इंगमी, इंग, इंग. अच्छा देखो तो इसमें क्या है? अच्छा मेरी मम्मी क्या बोलते हैं? मेरी मम्मी साहब बोलती है ना, है ना? तो कुछ ना कुछ तो बोलना है ना कि ऑब्वियसली कैसे हम टॉकिंग बट यू आर नेवर टेकिंग द नेम आउट ऑफ रिस्पेक्ट. गुरुजी बोलती है क्यों? अच्छा कुछ ऐसा क्या स्लैंग निकाल लेते हैं, है ना? है ना? अच्छा ठीक, सही में होता है भाई, होता है ना? अच्छा आज के टाइम पे तो एवरीथिंग इज ओके, है ना? आज के टाइम पे तो सब चलता है ना? है ना? क्या हो गया? अच्छा मुझे समझ नहीं आया तो शर्माई क्यों थी? हाँ तो मम्मी पापा की बातें में तू क्यों शर्मा रही है? मम्मी पापा है वो, ना ज्यादा शर्माते हो तुम लोग. चलो लेट अस स्टार्ट. ठीक, अच्छा एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दीज आर द नेम्स. अच्छा एक चीज और याद रखना, सेम इन माय हाउस आल्सो. अच्छा रोशनी इज आल्सो सेम. अच्छा ठीक है ना? होता है यार, ये होता है ना? लेकिन आज की क्लास में जितने भी मतलब आई कैन सी देयर क्या 1 2 3 4 5 एंड क्या सर्टेन ऑफ द गर्ल्स हु आर आउट देयर इन ऑनलाइन. ठीक, एवरीबॉडी विल बी क्या कॉलिंग देयर स्पाउस बाय देयर नेम्स. हाँ 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 एक्चुअली क्या? अच्छा मम्मी पापा की शक्ल याद आ गई. ओके ठीक, कोई हंसी आ गई. चलो ठीक है, हंसो मत यार, हंसो मत. ठीक ओके. अच्छा एक प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग, है ना? मेरे भी मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं यार, है ना? उनका दिन पूरा नहीं होता जब तक क्या वो लड़ाई करे ना, है ना? नहीं ये दैट इज ट्रू. ठीक है, टिल द टाइम यू आर नॉट फाइटिंग, है ना? है ना? इट गिव्स यू, अच्छा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना फीमेल डोपामाइन आई गेस इट इज बेसिकली द हार्मोन दैट इज गिविंग द हैप्पीनेस टू फीमेल्स, है ना? If I'm talking about from the age of 0 to 15, it is your toys. Okay, from 15 to around kya 30 35, it is basically if someone is giving you compliment, then your dopamine release is basically happening in the case of females. Okay, from 35 to 50, it is basically the achievement of their children that is basically giving them dopamine, है ना? After 50, it is the kalesh. It is the fights that basically are doing it, that is basically giving them the ultimate happiness, and that is true. 50 के बाद औरतों को खुशी मिलती है किसमें? लड़ने में, कलेश करने में, एंड दैट इज ट्रू, है ना? चलो ओके. अच्छा अच्छा जलियांवाला बाग मैसेकर इज बेसिकली ओवर राइट ऑन वन ऑफ द थिंग दैट इज आउट देयर. ठीक, इससे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ यू आर बेसिकली हैविंग आफ्सपा. आफ्सपा यू नो, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट. दैट इज बेसिकली क्या पास्ड इन ऑर्डर टू, ठीक, स्टीरियोटाइप. अच्छा नहीं, दैट इज नॉट स्टीरियोटाइप, है ना? डोपामाइन it is if I'm talking about it is क्या रियल, है ना? एड्रेनलिन इज बेसिकली द काइंड ऑफ द हार्मोन दैट इज बेसिकली क्या गिविंग यू एंजाइटी, है ना? डोपामाइन इज बेसिकली हैप्पीनेस हार्मोन. मे बी अ स्टीरियोटाइप, आई डोंट नो. ठीक, अच्छा प्लीज रिमेंबर वन थिंग on the same line that if I'm talking about just like your ASPA, at that time there was yeah one of the bill that was basically passed called as your whitewashing act. Whitewashing act. This act if I'm talking about that is क्या whitewashing act that was basically क्या passed at that of the time. अच्छा इसको मैं और भी क्या बोलता हूँ, that is indemnity act. हाँ, indemnity act. ठीक, through this of the act if I'm talking about, ठीक है, those of the officers who were basically serving in your Indian region, they were basically a certain kind of protection. ठीक, so since they were basically given the protection, so even क्या dire actions were basically considered to be, yes they were unjust, ठीक है, but they were totally legal, and no inquiry, no I will be saying that action that was basically taken against whom, that is vaginal diet. Okay, able to understand? With this your entire of your जलियांवाला बाग basically क्या comes to. नहीं, कमीशन ने तो रिकमेंड किया था कि नहीं, whatever the diet did it was unjust. ठीक है, but still always remember that is whenever some of the commission is basically giving you certain kind of recommendations, that is not bound on the government.
ठीक, so those are the recommendation. Yes, this entire the commission basically said whatever the Dyer did, ठीक है, it was क्या, it was just escalating the thing way too much, ठीक है, without even any of the warning, you basically shot the people, ठीक है, that was unjust, but still no of the action could be taken against these other people. Why? Because already the whitewashing bill or the indemnity act had been क्या, already passed, because of which these other officers were basically already having certain kind of protection and no legal action could be taken against them. ठीक है, all good. चल, let us क्या proceed over next of the topic that is out there is non-cooperation movement. Non-cooperation and खिलाफत. दो तीन topics और बचे हैं. By next week I will try to complete entire of modern history and after that we'll be starting with your medieval history. ठीक है, अगला हेडिंग डालना that is non-cooperation movement. Non-cooperation and खिलाफत movement. नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट. ठीक है, आज मैं बड़ा खुश हूं. कंचन ले. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, है ना. हाँ, देयर इज अ रीजन. ठीक, इट इज रिलेटिवली इजी. दैट इज आई स्टार्टेड विद मॉडर्न. ठीक, हाँ, यस, मॉडर्न इज रिलेटिवली इजी. ठीक, and since you people are new in this entire of the thing, ठीक है, so over the period of time you will be having a certain kind of grasp over the subject. ठीक है, you will be having a certain kind of, I will be saying, stability. ठीक है, अगर शुरुआत में ही आपको क्या इधर उधर के एंशिएंट में अगर मैं बात करूं ना, एंशिएंट इज बेसिकली बिट टफ, दिमाग खराब हो जाता है. क्यों? बहुत ऊटपटांग से नाम आएंगे. ठीक है, ठीक है, यस, ठीक है, इट इज क्या बिट टफ एज वेल एज इट इज बिट बोरिंग, है ना. इट इज बिट टफ एज वेल एज इट इज बिट बोरिंग. ठीक, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा पर्सपेक्टिव एक बना हुआ है एंड दैट इज व्हाई एवरीवन इज बेसिकली स्टार्टिंग विद योर मॉडर्न हिस्ट्री. व्हाई? दैट इज, इट इज इंटरेस्टिंग एज वेल एंड इट इज इजी एज वेल. ठीक है, सो बाय द टाइम यू आर बेसिकली रीडिंग योर medieval as well as ancient, you will be having a certain kind of back of the mind that is एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा ऑन व्हिच यू बेसिकली कैन बिल्ड. एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक, पूरा भी आपका बैच चलने वाला करीब 1 महीना हो गया ना, अराउंड 1 मंथ. ठीक है, अराउंड 2 months इट विल बी टेकिंग मोर in order to complete all of your history. या 3 ही दिन तो मिलता है, 3 ही दिन तो मिल रहा है. ठीक, चलो, let us start with the non-cooperation and खिलाफत movement. So what is the weightage of ancient and modern? अच्छा, अगर मैं बात करूं till now तो modern का weightage had been more. ठीक है, modern का weightage had been more. ठीक, but this year if I'm talking about, that is from past 2 years से ancient is also क्या making its present felt in the examination. पहले ancient से आता ही नहीं था क्वेश्चन. If I'm going around क्या 4 to 5 years back, there was hardly any of the question that was basically answered from ancient or medieval. ठीक, entire of your weightage was basically on modern. ठीक, but आज जैसे इस बार के पेपर में क्या around 3 to 4 question were basically of modern and relatively क्या good number of question around क्या 3 to 4 were also from ancient. So ancient has क्या came in parity with your modern now. Earlier it was only modern India that was being asked. हाँ, ठीक, एंशिएंट के आप अब आने लगे हैं ज्यादा, पहले बिल्कुल नहीं आते थे. हाँ, हो सकता है अगले साल एक भी ना आए. इट इज वेरी मच पॉसिबल. ठीक है, अच्छा, whenever I'm basically using the term non-cooperation, I'm always using the word as खिलाफत movement. ठीक, why is it that Shravanya you have studied 2 times? हाँ, हाँ, yes, exactly. ठीक, ओके, ठीक है, वेरी गुड. ठीक, whenever I'm talking about that is non-cooperation and खिलाफत movement, we are basically क्या using that entire of the thing in tandem. Tandem basically means in continuity. Why? Because Gandhi, if I'm talking about Gandhi ji, basically क्या analyze this entire of the situation to be I will be saying a precious movement, a precious time in which Hindus and Muslims का unity can be क्या ensured. Able to understand? So if I'm talking about why we are always using the word non-cooperation and khilafat movement, it is very much important. Why? Number first of the thing, that is Mahatma Gandhi at that time basically क्या conducted this entire of the movement in a manner to ensure that is
Hindus and Muslims, Hindus plus Muslims should be coming together. Hindus plus Muslims should be coming together. Able to understand? Acha. Number second thing, why this entire of the thing is basically important, because for the very first time, Congress basically shifted its gear from constitutional to extra constitutional method of struggle. Okay, I am saying for the very first time, Congress, if I'm talking about as a body, they relied on the usage of extra constitutional method of struggle. Extra constitutional method of struggle. Extra constitutional method of struggle. Able to understand? ठीक. अच्छा, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ स्ट्रगल किसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया था? दैट इज एक से रुकना. ठीक, आई विल नॉट बी यूजिंग द वर्ड एक्सट्रीमिस्ट नाउ. I told you that is after your session of 1916. Okay, there were no extremists, there were no moderates. Okay, entire of the distinction had basically became blurred. Surat split mein there had been a certain kind of distinction. I never used the word extremist or moderates. That entire of the distinction, if I'm talking about, was relevant in 1960. Uske baad this entire of the thing is not relevant. Okay, yes. लखनऊ पैक्ट लेकिन साइन किसके बीच में हुआ था? ठीक, सो लखनऊ पैक्ट एज अ टर्म इज प्रॉब्लमैटिक. समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर इट वाज नॉट, लखनऊ पैक्ट वाज नॉट साइन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम. ठीक, yes, exactly, and we will be coming to it. ठीक, गांधी जी answered what is ANS? Sorry, what is ANS? मैं समझा नहीं. Answered Muslim League, Congress and Muslim. हाँ, ठीक. Able to understand? अच्छा. If I'm talking about, this was the very first time that when Congress basically decided that we will be switching to your extra constitutional method of struggle. Yes, Tausif, you were saying something. भाई ऐसे यार मेरा दिल कमजोर है भाई, मैं मर जाऊंगा, है ना, डराया मत कर, है ना, मुझे लगा कि probably this class is haunted now, है ना, है ना यार, आराम से बोलो, है ना, मतलब, है ना. अच्छा, पहले बोलो आराम से, है ना, कि सर, अच्छा वो भी नहीं, मतलब बोलो लेकिन प्यार से, है ना. माइक तो यूज करने को, अनम्यूट करके बोलने को. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्यों? हम लोग को पता था कि आवाज कैसा आता है. अच्छा, हाँ यार, डराया मत करो, है ना. मुझे लगा मैं कॉन्ज्यूरिंग का वो वाला देख रहा था सीन, है ना, जिसमें क्या होता था, वो लड़की जो हो जाती है, वही चुड़ैल तो नहीं. व्हाट कॉन्ज्यूरिंग में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन पोजेस्ड, व्हेन द गर्ल वाज गेटिंग पोजेस्ड, है ना, शी वाज बेसिकली साउंडिंग लाइक दैट. देखिए कॉन्ज्यूरिंग, है ना, कॉन्ज्यूरिंग 1 2 और 3, ऑल 3 यू हैव, 3 यू हैव नॉट सीन. व्हाई? अच्छा, so probably you should verify them, है ना. No, अच्छा, I wanted to see Conjuring 3 as well, but I'm a kind of the person who basically क्या rely more on free version, है ना. ठीक है ना, तो अगर यार प्राइम टाइम पे आ जाएगी Conjuring 3, probably मैं जाऊंगा किसी के साथ जिसको डर लगता है. ठीक, ओके, चलो, ठीक. अच्छा, if I'm talking about, अच्छा, you will tell me movies, पक्का? अच्छा, after the class, है ना, please tell me. वैसे भी क्या, टुमारो इज, हाँ, टुमारो इज सैटरडे, है ना, तो सैटरडे इवनिंग आई कैन एंजॉय. ठीक, नाइट नहीं भाई, हम डे में एंजॉय करते हैं, हम नाइट वाइट में एंजॉय नहीं करते हैं. हाँ, ठीक, लेकिन मुझे कुछ वाइब दूसरे तरीके से आई थी, है ना, कुछ भी, है ना. नागपुर सेशन एक याद रखना, दैट इज द नागपुर सेशन ऑफ 1920. Nagpur session of 1920 में it was decided that we will be switching to the extra constitutional method of struggle. Take, and as a result of that, if I'm talking about this extra constitutional method of struggle was basically applied in your ठीक है, yes, in your Congress and खिलाफत, मतलब नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट. ठीक, एक बार फिर से क्या पूरा सिनेरियो बता देता हूं. Have you written this thing, Shavanya? All good? हाँ, Nagpur session of 1920. This was very much important. Why? Because in this Nagpur session in 1920, Congress for the very first time said that we will be switching to extra
constitutional method of struggle. And I have told you what is extra constitutional method of struggle. That is not written in the constitution, something extra to the constitution. Able to understand? अच्छा ठीक. अब देखना एक चीज याद रखना, that is at that time if I'm talking about, अच्छा मैंने बोला that is the first world war का tenure था, that is 1914 to around 1918 1919 है ना. ठीक. At that time if I'm talking about, ठीक है, Ottoman Empire was basically fighting. Ottoman Empire was basically fighting. In detail we will be doing in the world history, ठीक है, but अभी के लिए याद रखना that is Ottoman Empire was basically, अच्छा Ottoman Empire कौन सा empire था? That was basically ruling in around the region of Turkey, Saudi Arabia and few parts of Iran and Iraq. समझ पा रहे हो वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है. So in this entire of the region, ठीक, in this region, ठीक, able to understand around the region of Turkey you will be finding that this entire of the Ottoman Empire had been there. ठीक. अच्छा Ottoman Empire if I'm talking about in that of the time, ठीक, they were basically क्या defeated. They were defeated. Able to understand? They were defeated. ठीक. Yes. ठीक. अच्छा. Then I have also told you one of the point. It is always the क्या victors who are writing the history. ठीक है, because they are in a better bargaining position and they can basically क्या impose their conditions on the defeating party. चौधरी साहब all good? ठीक. इतनी खुश क्यों है? का? हाँ? ओह अरे यार, ओह है ना, सही है. ओह ये खुशी. ठीक. अच्छा if अच्छा what does the meaning of Vimili? Vimili means something pure, है ना. Okay, अच्छा नाम है Vimili. Even I am very much के Vimili from heart, pure from heart. ठीक है. Okay, चल. And this Ottoman Empire if I'm talking about was basically defeated in that of the time. And as a result of that, ठीक है, there was a treaty that was basically signed with these of the people that is called the Treaty of Sevres. ठीक है, ठीक है, Treaty of Sevres. ठीक. अच्छा, this was basically one of the town in your region of France. ठीक है, फ्रांस का एक छोटा सा टाउन था. अच्छा, जहां पे भी ये टाउन वाउन होते हैं ना, उन्हीं के नाम पे मैं क्या कर देता हूं, ये ट्रीटी कर देता हूं. यस, SEVRES, SEVRES. ठीक है. अच्छा, जिस भी टाउन पे मैं ट्रीटी साइन करता हूं, बेसिकली नेमिंग दैट ऑफ द ट्रीटी बाय दैट ऑफ द थिंग. अच्छा. यस, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश, फ्रांस, वो सब क्या कंबाइंड पावर हुआ बेसिकली क्या फाइटिंग अगेंस्ट दिस. ठीक है, ये मैं डिटेल में किसमें क्या बात करूंगा, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक, बात करेंगे डिटेल में. दैट इज वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, और इनके साइड पे कौन थे आपके क्या, जर्मन्स एंड दोज ऑफ द पीपल हु आर बेसिकली साइडिंग विद हुम, दैट इज योर ओटोमन एम्पायर. इसके ऊपर क्या हम लोग तसल्ली से बात करेंगे. ठीक. अच्छा, इट इज ऑलवेज सेड दैट इज इट इज बेसिकली द अनफुलफिल्ड एजेंडा. ठीक है, मतलब मैं बात करता हूं दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद the conditions that were basically imposed on the defeating parties, that is the Germans and Ottomans के ऊपर इतनी harsh conditions pose की that it was such a humiliating factor of these other people, and that ultimately lead to the Second World War. ठीक है, ठीक. Yes, rise of nationalism basically happened in entire of Germany, and as a result of that your certain other of the people basically rose. ठीक, तो बोलते हैं क्या कि World War II was basically, ठीक है, it was decided the World War II will happen on the day your World War I was basically completed, because very harsh measures were basically imposed on whom, that is the defeating parties. ठीक, इसमें से एक defeating party आपकी कौन थी, Ottoman, and as a result of that, through this of the treaty, humiliating conditions were basically imposed. Humiliating conditions were imposed. ठीक. अच्छा, एक चीज याद रखना, इवन इन टुडेज टाइम. ठीक, व्हाई इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एर्दोगन तो यार अब पता होगा ना दैट ही हैज बेसिकली वॉन द प्रेसिडेंट इलेक्शन वंस अगेन, है ना. रिसेंटली दैट इज क्या अराउंड क्या एक वीक पहले की न्यूज है, दैट इज एर्दोगन. यू नो हु इज एर्दोगन? ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की. ठीक है, ठीक. अच्छा, अब तो हम बोलने लगे तुर्की है, बिकॉज द नेम हैज बेसिकली चेंज्ड. ठीक है, सो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द लीडर ऑफ पैन इस्लामिज्म. ठीक है, कि मैं क्या हूं, पूरे ही क्या दुनिया का जो वर्ल्ड इस्लाम जितने भी लोग हैं, मैं उसका क्या हूं, लीडर हूं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट ही डू, ही ट्राई टू रेज व्हाटएवर इज बेसिकली हैपनिंग रॉन्ग विद द मुस्लिम्स. ठीक है ना. तो इसीलिए क्या अगर मैं बात करूं, एर्दोगन ने क्या यूनाइटेड नेशन के स्टेज पे जाके ही बेसिकली सपोर्टेड हुम, दैट इज इमरान खान एट दैट टाइम. दैट इज क्या वेरी रॉन्ग विद द पीपल ऑफ कश्मीर इज बेसिकली हैपनिंग.
एक कश्मीरियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, जब पूरा आर्टिकल 370 का वो नहीं चल रहा था, ठीक है, ठीक, एट दैट टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एर्दोगन बेसिकली स्पोक इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, व्हाई इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, एज अ लीडर ऑफ इस्लाम, ठीक, व्हाई ही इज बेसिकली ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, क्योंकि भैया ठीक, पहले क्या था आपका ओटोमन एम्पायर, एंड ओटोमन एम्पायर का जो चीफ होता था, ठीक, जो हेड होता था, हिज नेम वाज खलीफा, मतलब उसको मैं क्या खलीफ बोलता था, खलीफा बेसिकली मींस क्या, टॉप पे जो रहता था, ठीक है, हसमत, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, दैट ऑफ द पर्सन वाज बेसिकली क्या कॉल्ड एज खलीफा, खलीफा मैं बोलता था क्या कि जो टॉप पे रहता था, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक, अच्छा ये खलीफा जो थे, ठीक है, हु वाज बेसिकली क्या हेडिंग योर एंटायर ऑफ द ओटोमन एम्पायर, ठीक, दैट पर्सन वाज बेसिकली कंसीडर्ड टू बी द एट द टॉप, ठीक, he was basically the leader of the Muslim world, all good, ठीक, वो हंसा रहा है मुझे, ठीक, able to understand, ठीक, अच्छा, okay, ठीक, so he was basically considered to be the head of the Muslim world. यार, okay, ठीक, ठीक, अच्छा, since he was basically the leader of entire of the Muslim world, ठीक, what basically happened that is Muslims who were out there, ठीक है, who were out there at any of the place basically का decided to speak in his favor, and so is the condition in India as well, ठीक, so is the क्या condition in the India as well, that is India में अगर मैं बात करूं that Indian Muslims also क्या try to raise entire of the voice, ठीक, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक, तो अगर मैं बात करता हूं उस टाइम पे ना गांधी जी को एक वो मिल गया था, अभी मैं डिक्टेट भी करवा दूंगा आपको, ठीक, गांधी जी बेसिकली गॉट अ अपॉर्चुनिटी दैट ही कैन बेसिकली यूज, ठीक, दैट इज योर मुस्लिम्स का कॉज एज वेल एंड हिंदूज का कॉज एज वेल टू ब्रिंग देम अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ठीक, अच्छा, ठीक, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैंने क्या वहां पे लॉन्च किया था, देखो, अच्छा, मुस्लिम का कॉज आपको समझ आ गया, दैट इट वाज बेसिकली योर, दैट इज योर मुस्लिम हु इज बेसिकली कंसीडर्ड टू बी द हेड ऑफ ऑल द मुस्लिम्स हु आर आउट देयर, ठीक, जो ओटोमन का जो रूलर होता था, ठीक, उसको मैं मानता था ही इज बेसिकली आल्सो द लीडर ऑफ योर एंटायर द मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे अगर मैं बात करता हूं आज के टाइम पे पोप, ठीक है, पोप पोप जो होते हैं ना आपके वहां पे क्या यूरोप है ना, ही इज बेसिक फॉर द क्रिश्चियन, सिमिलरली वाज बेसिक द स्टेटस ऑफ क्या खलीफा एट दैट टाइम, खलीफा एट दैट टाइम, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक, मुस्लिम्स का तो ये कॉज था, ठीक, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिंदूज हु वर बेसिकली आउट देयर, दैट इज इंडियंस वर बेसिकली सेइंग दैट आफ्टर द वॉर देयर हैड बीन द डिटोरिएशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक, डिटोरिएशन किसका हुआ, इंडियन सोसाइटी का, ठीक, नंबर फर्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज देयर हैड बीन लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट हैड बीन इम्पोज्ड ऑन इंडियंस, रिस्ट्रिक्शन कैसे, बोथ ऑन योर मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल आई बेसिकली टोल्ड यू रिगार्डिंग के एनार्कियल एंड क्राइम्स एक्ट, दैट इज रॉयलेट एक्ट, वो भी पास किया गया था, ठीक, तो मैंने क्या बोला, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, देयर वर वॉर टाइम इन्फ्लेशन एज वेल, वॉर टाइम इन्फ्लेशन एज वेल, able to understand, ठीक, then if I'm talking about other of the reason, that is there had been a demographic shift as well, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि lot of young Indians had basically fought from the side of whom, that is your Britishers, ठीक है, so many young men who had lost their lives, ठीक, and if I'm talking about other of the reason, that is Indian National Congress was basically not taken in due consideration, ठीक, if you basically क्या want to participate India in the war, you basically had to keep क्या Indian National Congress के leaders in due confidence, ठीक है, so INC, that is if I'm talking about Indian National Congress was not taken in consideration, it was not taken in confidence, able to understand, ठीक, if I'm talking about other of the thing, that is there had been lot of wartime miseries, जैसे अगर मैं बात करता हूं आज के टाइम पे क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया एंड यूक्रेन बेसिकली क्या फॉट अगेंस्ट ईच अदर, अच्छा उसकी वजह से क्या हुआ आपका, क्या क्या चेंजेस आए वॉर टाइम ग्लोबल लेवल पे, व्हाट हैड बीन द चेंजेस दैट हैड बीन ऑब्जर्व्ड, अनमोल विल टेल मी, रशिया और यूक्रेन के वॉर से ग्लोबली क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, बिकॉज यू कैन, आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, थोड़ा टफ है लेकिन यू कैन डू, हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक,
कैसे कैसे अजय, अगर मैं बात करता हूँ आज के क्या रशिया और यूक्रेन की वजह से, टेक नंबर फर्स्ट, व्हीट प्राइसेस इन एंटायर ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली रोज। इसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना व्हीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। क्या कि probably people will be buying from here at low cost and they will be selling in the global market at a higher cost, ठीक है। so wheat prices में आया, ठीक। then if I'm talking about that is आपका oil purchases to the region of Europe, ठीक है। gas purchases that was basically done by Europe from your क्या region of your Russia, ठीक है। oil and gas purchases it basically affected oil and gas purchases। then if I'm talking about there had been क्या surge in certain of the your air tickets as well, ठीक है। कैसे हुआ, बिकॉज एंटायर ऑफ द यूक्रेन वाज बेसिकली डिक्लेयर्ड एज दैट नो एनी ऑफ द फ्लाइट शुड नॉट बी फ्लाइंग ओवर दिस एंटायर ऑफ द रीजन। क्यों? क्योंकि भाई आपका वॉर हो रहा है, ठीक है। सो देयर हैड बीन क्या इफेक्ट ऑन योर ट्रैफिक चार्जेस, ट्रैफिक एयर ट्रैफिक में देयर हैड बीन क्या सर्टेन ऑफ द थिंग दैट हैड बीन ऑब्जर्व, ठीक। प्लस अगर मैं बात करता हूं और कैसे शिप नेविगेशन, ठीक है। आपका क्या हुआ, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का वो जो मतलब रीजन है, ठीक। उस पे क्या देयर हैड बीन सर्टेन ऑफ द थिंग्स की देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट वाज बेसिकली इंपोज्ड, ठीक। रशियन शिप्स को क्या ब्लैक सी और इस वाले रीजन से क्या निकलने नहीं दिया जा रहा, ठीक। या तो उनको क्या कन्फिस्केट कर दिया, ठीक। प्रोबेबली दे विल क्या ट्राई टू क्या आई विल बी सेइंग there is always a certain kind of vulnerability for militarization of entire of the zone, ठीक है। so if I'm talking about your ship navigation as well, ठीक है। तो अगर कभी भी क्या दो पार्टीज में वॉर होता है, इट इज नॉट दैट ओनली दीज टू पार्टीज आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड, एंड आई विल बी सेइंग दैट लॉट ऑफ अदर पार्टीज आर आल्सो क्या कमिंग इनटू एक्शन, ठीक। दे आर आल्सो क्या गेटिंग इफेक्टेड। ऑल गुड फैमिली, ठीक। So as a result of that there had been lot of wartime miseries that Indians were basically facing at that time, and as a result of that it was a very wise opportunity for Mahatma Gandhi to launch a mass movement, okay? And as a result of this you basically had got the cause for your Hindus as well, you have basically got the cause for Muslims as well, and as a result of that they basically decided to launch your non-cooperation Khilafat यंग मैन लॉस्ट देयर लाइफ यार। जैसे अगर मैं बात करूं उनके क्या बोलते हैं यार कि इट वाज बेसिकली द कॉलोनीज, ठीक है, हु वर बेसिकली सप्लाइंग द सोल्जर्स फॉर दीज यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। इंडिया से वो लोग क्या करते थे, ठीक, लोगों को क्या रिक्रूट करते थे इन ऑर्डर टू फाइट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। सो बहुत सारे क्या यंग मैन चले गए। किसने कहा था? उसने कहा था फिल्म का नाम नहीं, कौन सी फिल्म है? उसने कहा था। अच्छा, मुझे लगा उसने कहा था इस फिल्म का नाम है, मुझे लगा किसने कहा था, उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है। तो उसने कहा था, सब मूवी देख लेना, उसने ने कहा था, किसने, कौन बोल रहा है? श्रवण्या। किसने? अच्छा तूने देखी, उसने कहा था? नहीं तो मतलब उसका है क्या मतलब? उसमें मतलब एक लहना सिंह रहता है, ऐसे वो 12th बुक का एक स्टोरी, लहना सिंह, सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो उधर से जो लोग रिक्रूट किए गए हैं तो शायद रशिया के पास या फ्रांस के पास है, ऐसे ही मतलब वो दो रशिया फ्रांस मतलब है। अच्छा हाँ, तो फिर उसके बाद से वो लोग उसके खिलाफ लड़ गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश के लिए, तो फिर वो अपनी जान को मतलब लीड कर दे रहे हैं, वो मतलब यही सोच रहे हैं, वो एज अ ब्रिटिश के लिए काफी ज्यादा लॉयल्टी के साथ वो काम कर रहे हैं, वो मतलब छुट्टी भी नहीं ले रहे हैं ऐसा। मैं देखूंगा पक्का। अच्छा तू पिछले वाली तूने क्या बताई थी? एक 2 बीघा जमीन और उसने कहा था 2 बीघा जमीन ठीक है, वो 2 बीघा जमीन है ना। एक था पिंजर, व्हाट इज पिंजर? हम क्यों नहीं देखते? ध्यान से देखिए ये लोग कैसी कैसी मूवीज देखते हैं आप। 2 बीघा जमीन, उसने कहा था पिंजर। हाँ अच्छा अच्छा मैंने नहीं देखी भाई पिंजर, किससे? तू बता व्हाट इज दिस पिंजर मूवी ऑल अबाउट? हाँ बहुत पहले देखी थी काफी। हाँ तो मतलब अच्छा मैं देखूंगा यार। तेरा टेस्ट बड़ा डिफरेंट है यार शवन्या, तेरा टेस्ट है यूपीएससी वाला, है ना। हम तो गैंग्स ऑफ वासेपुर देख देख के ही बड़े हो गए ना, है ना। हम तो सबने गैंग्स ऑफ वासेपुर ही देखी है यहाँ पे। तू पिंजर देख, 2 बीघा जमीन देख, है ना, और उसने कहा था भी देख ले, है ना। हम लोग यार मस्ती, ग्रैंड मस्ती एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर पे ही अटके रह गए, है ना।
You haven't seen Masti and Grand Masti? Masti and Grand Masti, have you seen? I want you to watch that movie. It's a movie. You are 18 plus now? Then you can see it. You will not watch, why? No interest. केरला स्टोरी में इंटरेस्ट है. हाँ, केरला स्टोरी यार, केरला स्टोरी एंड कश्मीर फाइल्स क्या? These movies are suggested by, अच्छा सॉरी यार, है ना, बोल रहे these movies are suggested by विजेंद्र सर, और समर सर कौन सजेस्ट कर रहे हैं? मस्ती ग्रैंड मस्ती, है ना? तो यार वो इन ऑर्डर टू मेक योर मूड लाइट हो जाए ना, और कुछ ना, मैं तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहता. अच्छा, मूवी देखने. अच्छा, ओके, राइट डाउन फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, प्लीज राइट डाउन. Number first, you please write down. In September 1920, in a special session in Calcutta, in September 1920, सर आप हंसते हुए अच्छे लगते हो. अरे यार, अच्छे लगते हो. अरे यार, थैंक्स यार तौसीफ, है ना? फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही यार मेरी, ऐसा क्यों? क्या? हाँ, क्या है? हाँ, अभी भी है यार. देखो, इफ फ्रेंड इज गर्ल, ये है ना. अच्छा, तो मेरी बहुत सारी है ना. सर आप हंसते हुए अच्छे लगते हो. अरे यार, हाँ, हंसना चाहिए हमेशा. आप हंसते हुए अच्छे लगते हो. ठीक है, राइट ऑन. ठीक, इन सितंबर 19, पहले देखो मेरी तारीफ, उसके बाद पढ़ाई. अरे अच्छा, लाओ यार, ले लेता हूँ, ले लेता हूँ फोटो. अच्छा, दिस फोटो इफ आई एम टॉकिंग. हाँ, कवर हटा दिया, चेंज नहीं किया मैंने, कवर हटा दिया है. मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं क्या कि आईफोन ले लो. क्यों? हाँ, क्यों? अच्छा, तुम मेरी फोटो ले रही है? अच्छा ठीक है, मुझे बाद में दिखा दियो यार, है ना. हंस क्यों रही है? बहुत बेकार फोटो आई है. अच्छी भी खींच ले यार. तुम मुझे बता दिया करो, मेरी फोटो खींचते हो ना. क्लास के बाद खींचेगी? चलो ठीक. अच्छा, in September 1920, in a special session in Calcutta, Congress approved non-cooperation program. ठीक, इसमें लिखना what were the things they basically tried to use it. Take number first, boycott of foreign goods and instead use khadi. Boycott of foreign goods, मतलब उन्होंने डिसाइड क्या किया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या वी आर बेसिकली लॉन्चिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट हैज टू बी, क्या आई विल बी सेइंग क्या एडिशन इन दिस. ठीक, व्हाट आर द थिंग्स विल बी यूजिंग इन दिस नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम. ठीक, नंबर फर्स्ट, बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स and instead use khadi. Right on second point, boycott government schools and colleges. Boycott government schools and colleges. Number third, boycott council entries. अगले हफ्ते आपका पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म. ठीक, बॉयकॉट काउंसिल एंट्री. नेक्स्ट पॉइंट, boycott law courts. ठीक, right now next, work for Hindu Muslim unity. And work for removal of untouchability. All good? ठीक, नागपुर सेशन ऑफ 1920 मैंने बता ही दिया है. राइट डाउन नागपुर सेशन ऑफ 1920 में, नागपुर सेशन ऑफ 1920 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सी विजय राघवचारी. ठीक, अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ सी विजय राघवचारी. अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सी विजय राघवचारी. ठीक, राइट डाउन नंबर सेकंड पॉइंट, non cooperation program was endorsed.
cooperation program was endorsed. नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज एंडोर्स्ड. अच्छा, अप्रूवल एंड एंडोर्समेंट क्या मतलब होता है? देखो, अप्रूवल बेसिकली मींस हाँ तुम लॉन्च करो, ठीक. व्हाट इज एंडोर्समेंट? अच्छा, व्हाटएवर आई हैव डन वाज करेक्ट. ठीक. इफ यू आर एंडोर्सिंग एनीथिंग, दैट बेसिकली मींस दैट यू आर क्या सेइंग दैट व्हाटएवर आई हैव डन, व्हाटएवर दीस पीपल आर डूइंग, दैट इज करेक्ट. सो इन द फर्स्ट सेशन दे बेसिकली अप्रूव्ड, in the second session they said yes it is good, whatever we have done is good. So Calcutta session approved, Nagpur session endorsing of both क्या non cooperation movement. ठीक. Right on next point इसमें नागपुर सेशन में भी लिख लो, shift from constitutional to extra constitutional means of struggle. Shift from constitutional to extra constitutional means of struggle. Shift from constitutional to extra constitutional means of struggle. सही है, मस्त है पाजी, ऑल गुड. ठीक. अच्छा, एक चीज लिख लेना इसमें, एक और हेडिंग डालना, वेरियस इवेंट्स दैट टुक प्लेस अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. वेरियस इवेंट्स दैट टुक प्लेस अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नंबर फर्स्ट, वेरियस national colleges like Jamia Millia, Gujarat Vidyapeeth, ठीक, were established. Take, write down next point. Were established. Write down next point. Various labor strikes in tea plantations, comma, Assam, Bengal railway strikes were organized. Assam, sir, corroboration also means approval. Corroboration basically means that is when two of the parties are basically coming together and then they are basically giving certain of the assent to any of the task. ठीक है. Corroboration में थोड़ा सा partnership वाला angle भी involved होता है. हाँ, Assam Bengal railway strikes organized by James Singh Gupta. एक इंपॉर्टेंट इसमें लिखना, तिलक स्वराज फंड वाज इंस्टीट्यूटेड. जेम्स सेन गुप्ता. एक लिखो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज तिलक स्वराज फंड वाज आल्सो क्या केम ड्यूरिंग दिस ऑफ द थिंग. तिलक स्वराज फंड वाज इंस्टीट्यूटेड. क्या? जेएम सेन गुप्ता भाई. तिलक स्वराज फंड. ठीक. तिलक जी हमारे क्या बाल गंगाधर तिलक जी क्या उस टाइम तक मर चुके थे. ठीक है, तो उनके क्या मेमोरी में, ठीक, दिस तिलक स्वराज फंड वाज बेसिकली कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग योर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, ओके, एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक. अच्छा, दिस वाज एंटायर ऑफ द थिंग आई बेसिकली टोल्ड यू रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक. How this non-cooperation movement basically came to an end. That is also a very nice story that you have to remember. Nice तो नहीं बोलूँगा, sorry, wrong है ना. That was a very tragic incident that basically happened to Emily. Please forgive me for that. Your eyes are saying something else, है ना. She was very क्या judgmental when I say क्या कि क्या very nice thing happened. Sorry, that was not nice. That was a very tragic. Your look is like that. चलो ठीक, okay, ठीक. अच्छा, इसमें एक इंसिडेंट हुआ था, दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922. चौरी चौरा, इसको पता नहीं, मुझे क्या सुन के एक गाना याद आ रहा है. हाँ देख, और एक और भी है गाना, सुनते हो तुम लोग? ठीक से गाने सुना करो क्या, नन्ना मुन्ना राय हूँ देश का सिपाही, है ना. ज्यादा रोमांटिक गाने तुम लोग सुन रहे हो आजकल. ये काम सिर्फ मैं करूंगा. ठीक है. अच्छा, आगे देखो. ठीक. Okay, so if I'm talking about the Chauri Chaura incident of 1922, what basically happened? ठीक है. अच्छा, where is Chauri Chaura? चौधरी साहब बिहार में नहीं है, यूपी में.
ओह अच्छा ठीक. So if I'm talking about Chauri Chaura was basically a village in UP. ठीक है, it was basically a village in UP. And what basically happened, ठीक, इसमें नहीं क्या, there was a certain kind of tussle that was basically going on between your police and local people. ठीक, police and local people के बीच में there had been a certain kind of tussle that was basically going on. Obviously on the account of, अच्छा देखो यार, उस टाइम पे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, everyone who was basically having certain kind of grudge against the government, they tried to align their protest against whom, against the government through this नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. जैसे मैं बात करूंगा आपके, आपका मप्पिला रिवोल्ट भी हुआ, ठीक, दैट वाज अ रिलीजियस मोटिवेटेड रिवोल्ट. ठीक है, ठीक है, अभी मैंने उस पर बात नहीं क्यों, क्योंकि दिस इज एनसीईआरटी बैच. ठीक, so lot of the thing basically happened in that of the course, and everybody was trying to क्या align their cause with the non cooperation movement. ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं एक बार अपने क्या बाबा रामदेव, he basically sat for unshan against your that Sonia, sorry क्या मनमोहन गांधी का government that was out there. ठीक है, sorry for that word, है ना, मनमोहन गांधी बोल रहा हूँ, मनमोहन सिंह का government that was out there, है ना. तो उस टाइम पे lot of the people, even क्या there was one of the college student who basically came and they said कि हमारे कॉलेज को खत्म किया जा रहा है, they are taking our recognition, ठीक, so please protect our future. So whenever there is certain main revolt, that is main rebellion that is basically taking place, certain of the people are basically trying to align their cause within that of the thing. ठीक, similar was basically the case against your चौरी चौरा incident as well. ठीक, लोगों के बीच में क्या, पुलिस डिटेल में कब बात करेंगे, एडवांस में. ठीक है, पीपल वर बेसिकली क्या, वर हैविंग सर्टेन ऑफ द ग्रजेस अगेंस्ट, ठीक, against few of the things that were basically happening in their village, and as a result of that, take, they basically came in confrontation with your police. This was police and this was masses. Able to understand? And in this entire of the thing, police basically fired few of the bullets on masses, in which if I'm talking about your, certain of the people got killed. And as a result of that, in order to take revenge, what these people did, they basically क्या, torched entire of the police station. ठीक, torched basically means आग लगा देंगे. ठीक है, अच्छा वो जो क्या, वो कौन सा आता है, डांस इंडिया डांस, आग लगा दी, है ना, कौन है, समझ गए ना, है ना, तो है ना, इंडियन आइडल है, हाँ, अच्छा आग लगा दी. तो दे बेसिकली क्या, टुक दिस एंटायर क्या थिंग वे टू सीरियसली, और उन्होंने आग दिख नहीं रही आग है, राम गोपाल वर्मा की नहीं है, मेरी आग है. ठीक है, so this was basically the entire of the police station, and whosoever was basically trying to flee from that of the police station, उन्होंने क्या पकड़ के उसको, तो सभी पुलिस वालों को किसमें फेंक दिया, आग में फेंक दिया. ठीक भाई, हंस मत यार, बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था यार राहुल, है ना. ठीक, so this was your चौरी चौरा इंसिडेंट. ठीक, ठीक, अच्छा, in which around 22 policemen died. ठीक, around 22 policemen basically died in this entire of the चौरी चौरा incident. ठीक, अच्छा, after this incident, if I'm talking about, Gandhi ji was basically very much moved. ठीक, क्या थे, बहुत मूव हो गए, भैया ये क्या हो गया. ठीक, ये क्या हो गया, हाँ, because he basically preferred non-violence, and this movement, if I'm talking about, was basically taking some other of the turn, and he called entire of the non-cooperation movement as off. Okay, he called off entire of your non-cooperation movement. So this was your Chauri Chaura incident, in which इसे जेल की अभी मैं बात करूंगा. ठीक है, एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक, सो ही बेसिकली वो जो जेल वेल जो बोल रहे हैं ना, जेलिंग क्या उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की हुई थी. व्हाई, बिकॉज क्या कांग्रेस के अगेंस्ट, ठीक, देयर हैड बीन क्या एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट बेसिकली टुक प्लेस. एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक, ठीक, सो दिस वाज अ चौरी चौरा इंसिडेंट, एंड आफ्टर दिस चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922, ठीक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was called off. ठीक, अच्छा, इसका याद रखना, दैट रेजोल्यूशन दैट वाज बेसिकली आउट देयर. ठीक, एक यार मैं बोलता हूं, बरदोली रेजोल्यूशन. थ्रू बरदोली रेजोल्यूशन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ही कॉल्ड ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड एवरीथिंग वाज टाटा रेजोल्यूशन. हाँ, बरदोलिया जगह का जहां पे नाम होता है ना, ठीक, उन सारी जगहों को मैं क्या बोलता हूँ, बरदोलिया तुम्हें मिलेगा यूपी के आसपास के रीजन में मिलना चाहिए, यूपी एंड बिहार के रीजन में. ठीक, एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक, सो दिस वाज योर एंटायर ऑफ योर रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. बरदोली यार आपको गुजरात में मिलेगा, करेक्ट कर लो.
गुजरात यूपी का, बरदौली कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात में। क्या? अरे मूवमेंट नहीं था यार, ये जहां से गांधी जी ने क्या रिजोल्यूशन दिया कि नहीं भैया अब ये क्या चीज खत्म हो गई, ठीक, उस जगह का नाम था बरदौली। बरदौली वाज बेसिकली इन द रीजन ऑफ गुजरात एंड दिस एंटायर ऑफ द रेजोल्यूशन वी आर क्या कॉलिंग इट? बरदौली रेजोल्यूशन। सो बरदौली रेजोल्यूशन से आपका दिस एंटायर ऑफ द थिंग बेसिकली केम टू एन एंड, ठीक। एनसीएम वाज कॉल्ड ऑफ, ठीक। सो दिस वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कंचन तू इतना खुश क्यों है? बता दे। सर मैं खुश ही रहती हूँ, है ना। अच्छा मैं तेरे नाम क्यों बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्या? क्योंकि कल मैं तेरा क्या नाम लेने में, है ना, समझ गई, चलाक, है ना। तो आज वेरी चलाक बॉय, है ना, ब्रो। अच्छा, है ना, तो ना बहुत चलाक नहीं हूँ यार, मैं कंपनसेट कर रहा हूँ, है ना। अच्छा नाम है ना हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आइडेंटिटी होती है, ठीक। सो नाम भूलना, मैं भूला नहीं था, देख मुझे याद था, है ना, ठीक ना, मैं भूला नहीं था बट मुझे याद था, ठीक। क्या? हाँ पेट में था, मुंह में नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, दो ही चीज होती है ऐसी। ठीक, अच्छा नहीं यार, ओके देख, आगे देखना, ठीक, आगे देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? कंपनसेट कर रहा हूँ। कंचन 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 मोबाइल रखा हुआ है। आगे देखना, राइट डू नेक्स्ट थिंग दैट इज आउट देयर, ठीक। लिखो लिखो, एक कंसेप्ट लिखना यार, ठीक। द कंसेप्ट ऑफ क्या? स्वराज्यिस्ट, स्वराज्यिस्ट का एक कंसेप्ट लिखो, ठीक। एक कंसेप्ट लिखना। After this entire of the thing, that is if I'm talking about your non-cooperation movement, everything basically got transformed. कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? देखो देखो, if I'm talking about after your Congress, after your 1922, there was a certain kind of, if I'm talking about tussle that was basically going on. What has to be the future course of your Indian national movement? एक चीज याद रखना है हमेशा ना, मैं बात करूंगा दो टाइप के आपके अप्रोच रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, ठीक। नंबर फर्स्ट आई एम सेइंग स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, एंड अदर ऑफ द थिंग इज बेसिकली स्ट्रगल टू विक्ट्री, स्ट्रगल टू विक्ट्री, ठीक। स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, अभी इसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल वाज बेसिकली योर वे ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम एज पर महात्मा गांधी, एज पर महात्मा गांधी, ठीक। मैंने क्या बोला? एसटीएस स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसे, क्या? एसटीएस स्ट्रैटेजी, ठीक। एसटीएस स्ट्रैटेजी बेसिकली मींस योर स्ट्रगल, ट्रूस एंड स्ट्रगल, ठीक। दूसरा मैं क्या बोलता हूं यहां पर, ठीक, आई एम सेइंग स्ट्रगल, आते हैं यार, विक्ट्री, ठीक। ट्रूस बेसिकली मींस अ पीस टाइम, नहीं देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूं, ट्रूस बेसिकली मींस अ काइंड ऑफ पीस टाइम। जब भी याद रखना, जब भी क्या, व्हेन टू पीपल आर बेसिकली फाइटिंग, खूब गुत्थम गुत्था हो रहा है, क्या देयर क्या लॉट ऑफ थिंग दैट आर बेसिकली हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू विल बी गेटिंग टायर्ड, हो जाएगा ना। फिर एक टाइम पे क्या होता है, अच्छा यू हैव सीन दैट 90s का मूवी एज वेल, है ना, दे आर बेसिकली स्टार्टिंग विद फुल ऑफ द एनर्जी, है ना, पूरा क्या लक्का, क्या वो क्या लात और घूंसे से क्या बेसिकली दे आर फाइटिंग। अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम they are basically getting so much tired that after in the intensity of the boxing is also get reduced. ठीक। So if I'm talking about अरे यार ठीक, if I'm talking about that is, if I'm talking about your intensity to fight, intensity to fight for a limited period of time is there, take, after that you are basically getting tired, ठीक है, you are getting tired, able to understand, you are getting tired, ठीक है, and when you are basically getting tired, ठीक, at that time we are basically calling out peace for certain period of time, ठीक। जैसे मैंने बोला था आपको, क्या मैं वो बताया था, क्या मराठा वॉर आपको पढ़ाए थे, ठीक है, मराठा वॉर आई बेसिकली टोल्ड यू, ठीक। फर्स्ट मराठा वॉर वाज बेसिकली एंग्लो मराठा वॉर वाज बेसिकली फ्रॉम 1775 to 1782, ठीक। At that time I basically told you there was a truce period of 20 years, ठीक, हाँ, by treaty of Salbai, I basically told you, ठीक।
So similarly, if I'm talking about when people are basically fighting against certain of the enemy or certain of the power, okay, over the period of time they are basically getting tired, okay, and when they are basically getting tired, I'm basically calling a certain kind of truce period, that is a kind of peace, that is neither you will be doing something, neither I will be doing something, a certain kind of peace period, okay. So Gandhi ji, if I'm talking, and then again kya switch back to your struggle, again kya switch back to your struggle, able to understand? So when I'm saying struggle, truce, struggle, that basically means that is this entire of the thing, is basically your पहले स्ट्रगल करो, फिर थक जाओ, फिर क्या शांति से बैठ जाओ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड आफ्टर दैट अगेन क्या स्टार्ट योर स्ट्रगल, ठीक। अच्छा, if I'm talking about this truce period was very much important. Why? According to Mahatma Gandhi, take, there is always a limitation to the amount of the sacrifice that people can basically क्या make, ठीक। एक लिमिटेशन होता है लोगों का सैक्रिफाइस करने का, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, लोग थक जाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन, ठीक। नंबर सेकंड ऑफ द थिंग, दैट इज a movement cannot be prolonged for a longer period of time. Movement cannot be prolonged for longer period of time, ठीक। किसी भी चीज को हम अगर लंबा खींचेंगे ना तो लोग बोर हो जाते हैं, और ये होता भी है, ठीक। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर का जब स्टार्ट हुआ था, शुरुआत में देयर वाज लॉट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, every of the news channel was basically reporting, take, what is happening in Russia, what is happening in Ukraine, and over the period of time people have basically became bored regarding that thing, ठीक है। अब कोई भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा, ठीक है। सिमिलर इज द केस एट दैट टाइम आल्सो, ठीक। तो उन्होंने बोला एक ट्रूस पीरियड होना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं बात करूंगा कि भैया इस ट्रूस पीरियड में क्या हुआ, ठीक, हाउ दे बेसिकली वांटेड टू कैरी आउट देयर स्ट्रगल इन दिस ट्रूस पीरियड, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। इस ट्रूस पीरियड में, if I'm talking about, people were basically trying in order to conduct their protest in certain kind of manner, ठीक। जिन्होंने बोला that we will be क्या ensuring council entries, ठीक। हम क्या करेंगे, हम जैसे लेजिस्लेचर में घुस के we will be क्या entering inside the legislature and we will be क्या protesting our from that of the point, ठीक। So the people who advocated for council entry, people who wanted to be the part of legislature, they were called as pro changers. Okay, that is these are the people were in the favor of council entries, कि भैया हम क्या करेंगे, हम legislature में जाएंगे। These people were basically in the favor of council entries, ठीक, council entry कर लो, समझ आया, ठीक। And there were certain of the people who were basically saying that is we will not be going for the council entry. Whatever the protest we basically have to क्या do, we have to do it from outside, ठीक है। लेजिस्लेचर के अंदर नहीं जाएंगे, और रादर क्या यूज दिस टाइम इन ऑर्डर टू वर्क फॉर द मासेस, स्कूल्स बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, ठीक है, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ठीक। सो पीपल हु वर बेसिकली क्या सेइंग दैट वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसिल्स, they were called as no changers, able to understand? So pro changers and no changers, खुशी, अब ठीक है, चौधरी साहब नहीं बोला मैंने तुझे, हाँ अब ऑड लग रहा है, हे भगवान अब क्या करूं यार मैं, चौधरी साहब। अच्छा, विमली हैज मेड अ न्यू फ्रेंड, oh everyone is a friend, अच्छा नहीं, you are probably क्या always sitting with that girl Sakshi, she's busy with study for tomorrow's test, हे भगवान क्या कर, हाँ वो अच्छी है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है तुम भी स्त्री हो, तुम भी कुछ भी कर सकती हो, स्त्री कुछ भी कर सकती है। अच्छा, कौन सी मूवी का डायलॉग है यश, स्त्री देखी है तूने, नहीं देखी, हद हो गई यार, हाँ उसका एंडिंग ये था कि प्रॉब्ली क्या एंटायर ऑफ द टाइम ही वाज बेसिकली थिंकिंग दैट आई एम क्या डूइंग समथिंग अगेंस्ट स्त्री, बट वो कौन सी थी वो लड़की, वो दैट एक्ट्रेस इफ आई एम श्रद्धा कपूर, ठीक, दैट श्रद्धा कपूर वाज स्त्री, ठीक है। हाँ नहीं, वो वापस गई अगले साल आने के लिए। अच्छा, उसमें था ना कि दैट एंटायर द स्टैच्यू दैट इज आउट देयर, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा था, ओ स्त्री रक्षा करना, नहीं
ओस 3 कल आना तो बाद में था, लास्ट में ड्यूरिंग द मूवी एंडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ना, उन्होंने क्या दे बेसिकली क्या हैड इरेक्टेड अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टैच्यू, ठीक है, जिसमें लिखा था ओस 3 रक्षा करना, ठीक है ना। अच्छा दैट मूवी वाज बेसिकली क्या पोर्ट्रेइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग दैट इज विमेन के अगेंस्ट जितना भी इनजस्टिसेस हुआ, ठीक, दैट वाज बेसिकली गिविंग द पावर टू स्त्री। स्त्री बेसिकली मींस फीमेल, है ना। प्लीज वॉच दैट मूवी स्त्री, ठीक, दो इट इज नॉट वर्थ टू वॉच, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड माय जोक यू शुड बी वॉचिंग इट, ठीक है। ओ स्त्री रक्षा करना, ओ स्त्री प्रोटेक्ट अस। हाँ हाँ उसमें बस एक ही चीज देखने लायक है मूवी में। हाँ नहीं, मैं डांस की बात कर रहा था। मैंने बोला था ना। अच्छा हाँ नहीं, वो डांस नोरा फतेही का जो डांस है दैट इज गुड, ठीक है, दैट इज गुड। हाँ हाँ अच्छा, नोरा फतेही को क्या ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करना कि अभी जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक, उसमें शी बेसिकली परफॉर्म्ड एज वेल, है ना, ठीक, हम तो ऐसे ही नोरा फतेही को ले रहे थे, वो भैया वो जाके के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शी इज परफॉर्मिंग, है ना। जो गाना कौन सा था, गाना नहीं याद आ ना, लेकिन कोई ठीक सा गाना था उस पे। हाँ हाँ कमरिया, एट दैट टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कमरिया वाला सॉन्ग वाज बेसिकली द पार्टी एंथम बन गया था, है ना। चलो एक वो वाला कमरिया नहीं कि कमरिया क्या लॉलीपॉप लागे लो, एक वो वाला भी कमरिया, हाँ लेकिन वो अलग वाला कमरिया है ना। ठीक, यस, एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्या प्रो चेंजेस एंड व्हाट इज नो चेंजेस, है ना। ठीक, अच्छा इसमें अगर मैं बात करूं ना, दैट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रो चेंजेस में, ठीक, प्रो चेंजेस में भी देयर वाज क्या टू ऑफ द डिवीजन दैट बेसिकली क्या हैपेंड, क्या क्या डिवीजन था प्रो चेंजेस में, लिखना, ठीक, प्लीज राइट डाउन, बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक। प्रो चेंजेस में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, देयर इज क्या टू ऑफ द डिवीजन दैट बेसिकली हैपेंड, ठीक, एक लिखना रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक ठीक, एक लिखना रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक, दूसरा द पीपल हु आर बेसिकली क्या अपोजिंग, दे वर क्या नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट्स। वैसे इनका क्या कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट का, ठीक, only they had basically given the name of responsivist as well as take this thing they are basically mentioning non-responsivist you will not be follow, yeah, you will be getting in the book, okay. So I am just using this name in order to make a certain kind of distinction, okay. If I am saying council entry, the people who will be doing the council entry, pro changes and no changes, take, ultimately they were also called as स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट क्यों, एक स्वराज पार्टी फाउंड हुई थी, क्या स्वराज पार्टी भी बताऊंगा, and that is as a result of that, for example they were basically called as swarajis, that is pro changes were called as swarajis, ठीक। इसमें भी there was certain kind of distinction that basically happened, responsivist and non responsivist। responsivist if I'm talking about those are the people who were saying that we will also be taking public offices, just like every of your MP or MLA is not minister, समझ रहे हो ना, every MLA and MP is not minister, the people who are occupying this position of minister, they are occupying the public offices। Similarly like that they were basically saying that responsivists were basically saying that we will be occupying public offices, we will be occupying public offices, and non-responsivists say that we will be participating in the councils but we will never occupy public offices। समझ आया, समझ पाया, ठीक, अच्छा नहीं समझा, अच्छा एक बात बता, what is the difference between normal MLA and a minister? मिनिस्टर कौन होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा पार्लियामेंट तुम्हारा है, एवरी पर्सन, अच्छा जैसे वो कौन सी क्या लेडी हैं, निर्मला सीतारमण नहीं, स्मृति ईरानी भी मिनिस्टर है, ममता बनर्जी नहीं, अरे यार वो कौन से, साध्वी प्रज्ञा यू नो ना, वेरी मच फेमस फिगर, यू नो ना साध्वी प्रज्ञा, शी इज ऑलवेज इन द न्यूज, नहीं है, अच्छा साध्वी प्रज्ञा करके क्या, शी दैट लेडी इज बेसिकली वेरी मच इन न्यूज, ठीक, दैट लेडी इज पार्लियामेंटेरियन बट शी इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक ठीक, एवरी एमपी एंड एमएलए इज नॉट मिनिस्टर बिकॉज आपने क्या एक स्ट्रेंथ डिफाइन कर रखी, दैट इज नॉट मोर देन 15%, not more than 15% will be becoming your ministers, ठीक। तो if I'm talking about the people who are basically adopting those public offices, ठीक है,
Similarly happened in this case as well. Some people were basically saying that we will participate in the legislature, we will participate in the council in order to let the council not to work. समझे? जैसे क्या होता है काउंसिल में, क्या होता है कि क्या क्या ये चीज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे. Everybody is basically protesting. They are coming into the well, and when they are basically coming into the well, ठीक है, they are basically trying to stop the functioning of the parliament. ठीक होता है ना, ठीक. दे आर बेसिकली रेजिंग अननेसेसरी स्लोगन. जब आप अननेसेसरी स्लोगन क्या रेज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पीपल आर बेसिकली क्या नॉट, आई विल बी सेइंग द एंटायर द प्रोसीडिंग कैन नॉट टेक प्लेस. एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे, दीज आर द पीपल बेसिकली सेड दैट वी विल बी टेकिंग पब्लिक ऑफिसेस, ठीक. एंड दीज पीपल नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ने बोला कि वी विल नॉट टेक पब्लिक ऑफिसेस, नॉट टेक पब्लिक ऑफिसेस, एंड वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसिल ओनली टू स्टॉप इट्स वर्किंग. समझे? नहीं समझी कोमल? ठीक, नहीं समझी? अच्छा, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कभी देखिए? तुम लोग का पॉलिटिक्स हो चुका है, ऐसा डम्ब की तरह बैठे हुए हो. देखो पार्लियामेंट है, ठीक. पार्लियामेंट में हैव यू एवर सीन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट? व्हाट द अपोजिशन पार्टी इज बेसिकली डूइंग एवरी टाइम दे आर कमिंग? वेल क्या होता है? वेल जहां पे आपका स्पीकर बैठता है, ठीक, और चेयरमैन इज बेसिकली सिटिंग, उसके आसपास का जो खाली एरिया होता है ना, ठीक, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वेल. दैट इज कॉल्ड एज वेल, ठीक है. जैसे अगर, हाँ, जैसे ये होता है ना आपका, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज योर क्या स्पीकर का चेयर, एंड इन दिस ऑफ द मैनर में देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट दैट इज बेसिकली टेकिंग प्लेस, ठीक. यहाँ पे यू विल बी हैविंग द सिटिंग, यहाँ पे क्या है, सिटिंग होता है, पीपल आर बेसिकली सिटिंग इन दिस एंटायर ऑफ द रीजन, ठीक. अपोजिशन पार्टी क्या करती है? अपोजिशन पार्टी इज बेसिकली क्या कमिंग इन दिस ऑफ द एरिया, यहाँ पे क्या स्पीकर बैठता है, एंड दे आर बेसिकली सेइंग क्या, दे आर बेसिकली यूजिंग क्या स्लोगन्स, दे आर बेसिकली क्या रेजिंग प्ले कार्ड्स, है ना, इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट, ठीक. अच्छा, दिस एरिया इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड एज वेल, ठीक. एंड स्पीकर तब क्या बोलता है? प्लीज वेल में मत आइए, प्लीज वेल में मत आइए, दैट इज प्लीज डोंट कम इनसाइड द वेल. व्हाटएवर यू बेसिकली वांट टू क्या स्पीक, प्लीज स्पीक फ्रॉम योर सीट ओनली, ठीक. अच्छा, तो अगर मैं बात करता हूं, अच्छा मिनिस्टर अगर मैं बात करता हूं क्या सोनिया गांधी इज अ पार्लियामेंटेरियन, शी इज नॉट अ मिनिस्टर, शी इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक. अच्छा, तो अगर मैं बात करूंगा जो यहां पे हो गए मिनिस्टर्स, they had basically occupied certain of the offices, उन्होंने एक पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक. दैट फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, होम अफेयर्स, जो भी आपने क्या, यू बेसिकली हैव adopted a certain kind of portfolio, ठीक. other of the people who are out there, they are basically saying that we will protest by coming inside the well. हम क्या प्ले कार्ड करेंगे, स्लोगन करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, आज की क्या कार्यवाही यहीं पे स्थगित की जाती है, ठीक. This entire the proceeding is क्या stalled right now, we will be meeting after lunch. इस टाइप से क्या the speaker is basically saying, ठीक. So the people who are basically want that we have to be in the offices, who basically wanted to work with the government, they wanted to bring about the change by becoming the ministers, those are the people were called as responsivist. And those people who basically said that we will cannot be becoming ministers, we will only protest by coming inside the well, we will only be protest by creating ruckus. हमें बस ruckus create करना है so that this council cannot work. Those are the people were called as non-responsivist. वैसे क्या non-responsivist आपको word नहीं मिलेगा, I am basically using it in order to demarcate it from the responsivist. अब समझ आया? ठीक. People who were basically in the favor of the council entry, people who were not in the favor of the council entry. Take people who were in the favor of the council were called as your pro-changers. People who were not in the favor of the council entry were क्या called as no-changers. Pro-changers, no-changers. Pro-changers were further were basically further divided into responsivist and non-responsivist. Responsivists were those of the people who wanted to occupy public offices. They wanted to become ministers. Non-responsivists were those of the people who never wanted to occupy public office. But they only wanted to participate in the councils in order to create ruckus so that this council cannot function. Okay? Everyone till this point, all the online students? तौसीफ भाई यार तूने मेरा दिल चुरा लिया. तौसीफ लड़का है कौन सा? चुरा के दिल मेरा गोरिया चली नहीं. यस सर. कौन सा है? कद्दू कटेगा सब में बटेगा. एक ये भी है ना शायद. Able to understand this thing? अच्छा, अब एक चीज देख लेना, ठीक. प्लीज रिमेंबर वन ऑफ द थिंग, अब जब मैं मार्क करवाऊंगा ना आपके एनसीईआरटी में दी है, दे आर बेसिकली मेंशनिंग दिस एंटायर ऑफ द टर्म, एट दैट टाइम आई विल नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है. अच्छा, अब देखो एक चीज याद रखना, दैट इज पीपल हु बेसिकली गेट डिसाइडेड दैट इज हाँ,
इसमें याद रखना पीपल हु बेसिकली डिसाइडेड टू फॉर्म, who basically decided that we will be participating in entire of this thing, ठीक है। तो उनका यार लिखो, एक पार्टी का नाम लिखना, राइट डाउन, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये डिसाइड कब हुआ था? सेशन का नाम याद रखना, इन 1922 गया सेशन, इन 1922 गया सेशन, इन वेयर इज गया? अरे यार मैं बोल रहा था तू चुप रहे, ठीक, बिहार में है क्या, ठीक, यस, ठीक। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या गया, यू विल बी फाइंडिंग इन बिहार, ठीक। इसमें याद रखना दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, ठीक, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, यस, ठीक। प्रेसिडेंट वाज सीआर दास, चितरंजन दास, ठीक, एंड योर सेक्रेटरी वाज मोतीलाल नेहरू, सेक्रेटरी वाज मोतीलाल नेहरू। Able to understand? ठीक, अच्छा। तो people were basically saying that we wanted to participate in the session, and we basically had some of the people were basically saying we will not be participating in the council, and other of the people were basically saying we will be participating in the council, ठीक। So this was basically this entire of the thing was basically decided that we will be forming a different party। उन्होंने क्या बोला, आप हमें अलाउ नहीं करोगे कांग्रेस में, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्टी बना लेंगे। सो क्या, अ डिसीजन टू टेक, डिसीजन टू फॉर्म दिस पार्टी, ठीक है। अच्छा, पार्टी कौन सी बनी इन 1922 गया सेशन में? दैट इज कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। एबल टू अंडरस्टैंड? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है, तो इसके क्या प्रेसिडेंट कौन बने आपके? सीआर दास, एंड सेक्रेटरी वाज योर मोतीलाल नेहरू, ठीक। अच्छा, इसीलिए मैंने बाद में जाकर उनको क्या बोल दिया, स्वराजिस्ट। क्या? स्वराजिस्ट, दैट इज पीपल हु आर बेसिकली इन द फेवर ऑफ योर काउंसिल एंट्री, प्रो चेंजेस आपके, राइट नाउ वन लाइन, ठीक। एक लिखना 1922 गया सेशन, 1922 गया सेशन, 1922 गया सेशन, नंबर फर्स्ट। In this session, President was C.R. Das and Secretary was Motilal Nehru. President was C.R. Das and Secretary was Motilal Nehru. Okay, that one second point. The defeat of the Swarajist proposal to fight election. There was defeat of Swarajist proposal. There was defeat of Swarajist proposal to fight elections. To fight elections. Okay, write down third point. Third point लिखना, CR Das and Motilal Nehru resigned. CR Das and Motilal Nehru resigned to form Congress Khilafat Swaraj Party. To form Congress Khilafat Swaraj Party. To form Congress Khilafat Swaraj Party. ठीक। अच्छा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी में भी क्या थे, प्रेसिडेंट आपके सीआर दास बने एंड सेक्रेटरी वाज योर मोतीलाल नेहरू। एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा, अनु इज टाइपिंग समथिंग। अनु, एनी डाउट बेटा, कोई दिक्कत? सर सेकंड पॉइंट आफ्टर स्वराजिस्ट क्या लिखा है यार मैंने? हाँ, डिफीट ऑफ प्रपोजल ऑफ स्वराजिस्ट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, यही है ना? Defeat of the proposal of Swarajist to participate in the elections. Defeat of the proposal of Swarajist to participate in the elections, and as a result of that, your C.R. Das and Motilal Nehru resigned. ठीक है, all good? आगे देखो यार, see the next of the thing. Okay, Anu? Thanks, sir. अरे that is what I'm being paid for यार. Thanks. चलो, that is a courtesy, है ना? अच्छा, कई होते हैं ढीठ बच्चे, है ना? होते हैं कई लोग, है ना, उठ पटांग के मेल वेल लिखते हैं। अपनी बात नहीं कर रहा, हैपेंड विद सर्टेन ऑफ द फैकल्टीज एज वेल, है ना, ठीक। सर सेंड दिस थिंग एज सून एज पॉसिबल, है ना, ठीक। तो है ना, सो यू कैन नॉट ऑर्डर नहीं करते आप, है ना। यू व्हेनेवर यू आर बेसिकली एट द इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड, ट्राई टू बी एज पोलाइट एज पॉसिबल। तो फैकल्टी हमसे बोल देगी, समझ, अरे मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला हाँ सर, लगना भी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, लिखो।
So if I'm talking about, अच्छा देखो, now one of the section was basically saying that we will participate in the election. Other of the section was basically saying that we will not be participating in the election. Again, an ideological tussle. Same ideological tussle that basically resulted into the split of the Congress during the time of your 1907. That is Surat split between your moderates and extremists. Now again there was a kind of tussle in which the people were basically saying, some of them will be saying that we will be participating in the council entry, others were saying that we will not be participating in the Congress, in this of the thing. अब हुआ क्या यार, at that time if I'm talking about, now they had learned from their mistake that if we are basically diverting our way, there is basically no way forward. ठीक, अब मैं क्या करूंगा, what I will be doing, I will be let us look for a solution. Let us look for a solution, and this entire of the era was basically your era of Mahatma Gandhi. ठीक, so they basically ran towards Mahatma Gandhi. किसके पास गए? गांधी जी के पास गए. किसके पास गए? गांधी जी के पास गए कि भैया गांधी जी हमें बताइए हम क्या करें. ठीक, so this is considered to be the only of the session that was basically presided by Mahatma Gandhi. ठीक, this session was basically a Belagavi session of, जिसको आज के टाइम पे बेलगावी भी बोलते हैं, in the region of Karnataka. ठीक, Belagavi session of 1924 ठीक, जो तू बात कर रही थी ना सर, उसने कौन क्या उन्होंने रिजाइन कर दिया था, कि इसने महात्मा गांधी ने. हाँ अच्छा, मुझे लगा रिजाइन तो उन्होंने 1930s में किया था. ठीक, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ये क्या बेलागाम सेशन, जिसको आज के टाइम पे हम बेसिकली कॉलिंग एज बेलागावी इन द रीजन ऑफ कर्नाटका. दिस सेशन इज क्या कंसीडर्ड टू बी द only session that was presided by Mahatma Gandhi or in the Indian National Congress. ठीक, this is the only session which had been presided by Mahatma Gandhi. Only session presided by Mahatma Gandhi. Only session presided by Mahatma Gandhi. Only session presided by Mahatma Gandhi. ठीक, and what he basically said, ठीक है, he basically said that is there should be no division in the Congress party, there has to be no split. ठीक, Congress Khilafat Swaraj party, ठीक है, will only be acting as an arm of the Congress. It will only be an arm of the Congress who is basically fighting your legislative elections. ठीक, ये किसका पार्ट है? कांग्रेस का ही पार्ट है, बट देयर वाज नो स्प्लिट. सो ही बेसिकली सेड यस ओके, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, but you will be participating as an arm of Congress only. You will not be projecting your different identity. You will be an arm of the Congress who is क्या fighting entire of the nationalistic movement from within the councils. ठीक है, ठीक, so you will be an arm of the Congress party only. ठीक है, so that he basically decided that there has to be no split. आपको इलेक्शन लड़ना है, आप लड़ लो, but there has to be no split. You will be projecting yourself as an arm of the Congress only, no separate political identity. ठीक है कंचन, तो कौन से स्टेट से आई थी? एमपी में कहां से? भोपाल को शायद सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं ना. कौन से लेक्स है वहां पर? शाहपुरा लेक. अच्छा, और बहुत सारे वहां पर. बढ़िया चीज है. भोपाल में गया था एक बार, दो बार जा चुका. भोपाल में बड़ा खाली सी जगह है. नहीं यार, पता नहीं यार, मैं निकला बाहर है ना, तो क्या दिस बेसिकली कॉल्ड एज डेवलपमेंट, और आई एम बेसिकली सीइंग एवरीथिंग इन कंपैरिजन टू दिल्ली. दैट कुड बी द केस, है ना. तो मैं गया बाहर और मैंने देखा सब कुछ खाली. हाँ अरे यार ठीक है, मैं सही सी एरिया में गया था, किसी ऐसी एरिया में नहीं गया. अच्छा, भीड़ भाड़ वाली एरिया में गया था. ठीक है, खाली मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली मतलब पीपल वर देयर बट डेंसिटी वाज लो. तुम लोग, मैं कुछ भी बोलूं कहीं से घुमा फिरा के ना कुछ क्या समस्तीपुर यार, एक दोस्त की क्या दीदी की शादी थी समस्तीपुर, तो दोस्त की दीदी की शादी, तो इसमें क्या है? दोस्त की दीदी की शादी, दोस्त दीदी की शादी, समझ गए? तो इसमें हंसे क्यों नहीं? ये तो ठीक है दोस्त की दीदी की, लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात थी?
अच्छा तू सुनना चाहती नहीं सर, सर ने कोई वो बिहारी क्या घुमा रहे थे, उसका बर्थडे था, है ना? एक एक बंदा था, ठीक है, देयर वाज वन ऑफ द गाय हु वाज आउट देयर, ठीक है, ठीक। अच्छा ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या हिज गर्लफ्रेंड्स बर्थडे, ठीक है, तो बोथ ऑफ देम वर बेसिकली हॉस्टलर्स, ठीक। और लड़के की बंदी का, हम तो बंदी बोलते थे उस टाइम में ना, वी यूज्ड टू कॉल देम एज बंदी, भाई बंदी है ना, तुम्हारी भाभी है मेरी बंदी है ना, दैट वी यूज्ड टू कॉल हिम, ठीक। तो उसने क्या, जब बर्थडे था, ठीक, तो जितने भी गर्ल्स हॉस्टल्स थे वहां पे, क्या आवर कॉलेज बेसिकली हैड 3 और 4 गर्ल्स हॉस्टल, ठीक, तो जितने भी गर्ल्स हॉस्टल थे वहां पे उसके और उसके दोस्तों ने रात को 12 बजे पटाखे फोड़े, ठीक। हाँ हाँ, इन ऑर्डर टू मेक रियलाइज दैट, अच्छा लड़कियों में क्या, एक एक मैसेज पहुंचाना कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड को पॉपुलर करना, ठीक। उसके बाद क्या, पूरे कॉलेज वो लड़की पॉपुलर हो गई, ठीक है। इसके 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 बॉयफ्रेंड ने क्या किया था, रात के 12 बजे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पटाखे फोड़े थे। बताओ क्या क्या, मतलब क्या क्या फैंटेसीज होती हैं लोगों की। किया तो वैसे सही था, है ना? कोई ऐसा, अगर मैं लड़की हूं, है ना, इफ आई एम गर्ल एंड इन सम ऑफ द बॉयज बेसिकली डूइंग दिस थिंग फॉर मी, मुझे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तुझे? अच्छा बस बेशक क्या शक्ल में बोलेगे नहीं नहीं नहीं, आई डिडंट एंजॉय दिस थिंग, है ना, अंदर से तो देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट विल बी देयर। हाँ क्या, हाँ है ना, झूठ बोल रही ना, हाँ ये अच्छा लगेगा, है ना। सो दैट गर्ल वाज आल्सो वेरी मच हैप्पी, आई स्टिल रिमेंबर दैट। हाँ हाँ, वही गिफ्ट तो वही है ना, देख उसने क्या पूरे कॉलेज में पटाखे फोड़ के उसने अपना क्या, उसने अपना प्यार क्या किया, जग जाहिर कर दिया, बिगुल बजा दिया, वो क्या, वो शंखनाद था, वो शंखनाद था, दैट वाज बेसिकली बिगुल, है ना। उसके बाद एंटायर ऑफ द कॉलेज वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल एंड दैट बॉय। अच्छा तो क्या, अब तो क्या करना चाहिए तेरे हिसाब से, गिफ्ट देता? गिफ्ट कौन देता है? अच्छा एक एक ऐसे का केस है, ठीक, मेरा नहीं है, मेरे ऊपर मत लेना ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। तो हुआ क्या था, इन दैट ऑफ द थिंग, है ना, बेसिकली अ गर्ल बेसिकली गिफ्टेड समथिंग टू हर बॉयफ्रेंड, ठीक। अच्छा बॉयफ्रेंड, हाँ, बंदे को क्या कुछ गिफ्ट दिया। अच्छा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट बेसिकली हैपेंड कि आफ्टर दैट नाउ गर्लफ्रेंड्स बर्थडे केम, ठीक है, एंड बॉय वाज बेसिकली वेरी मच कंफ्यूज्ड व्हाट टू गिव, है ना, बिकॉज़ गर्ल्स आर वेरी मच क्रिएटिव बट बॉयज आर नॉट क्रिएटिव, है ना। सो बॉय वाज बेसिकली आस्किंग व्हाट आई शुड बी गिविंग यू, yeah, she said no no there's nothing required, you know, please only wish me in a nice manner, you know, that is enough for me. Okay, take, he again asked, take, what yeah, your birthday is coming in, please tell me, because girls are more interested very much excited for their birthday, yeah? He again asked what I should be giving you. He said no, nothing required, I'm just a very normal girl, take, and just wish me in a good manner, that will be wise, take। अच्छा हुआ क्या, बर्थडे आया and he just wished him in a nice manner take। अच्छा entire of the day she was basically expecting ठीक है कि probably I gave him a surprise and he must also be giving the surprise to me, है ना। और उसे कुछ नहीं मिला, he didn't क्या, she didn't क्या got anything after 2 days, मतलब for entire of those 2 days that girl was basically not replying to his messages, okay? तो हुआ क्या that boy basically क्या asked, that boy is not me, ठीक, that है ना, so that girl basically क्या आफ्टर, है ना, आप बहुत बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़े, ठीक है, ही बेसिकली प्लीडेड अ लॉट, व्हाट हैपेंड, आई डिडंट डू एनीथिंग। तो बोलते दैट इज द प्रॉब्लम, है ना, यू डिडंट डू एनीथिंग, इट वाज अ बर्थडे, यू डिडंट डू एनीथिंग, है ना। हाँ बता, मैं नहीं था वो, है ना। सो दो द गर्ल्स आर बेसिकली सेइंग, ठीक, दैट दे डोंट वांट एनीथिंग, but surely in the back of their mind they are comparing their boyfriend with someone other's boyfriend. That is the lesson that boy has got from that of the incident. We should not be doing that, but that was not me. Who said? No, that boy was not me, a good friend of mine, okay. So with that your entire of the thing, that is your non-cooperation movement and your council entry basically also comes to an end, ठीक। एक यार एक लिख लेना, राइट डाउन। अच्छा एक एग्जांपल लिख लो प्लीज, राइट डाउन फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। एक चीज लिखना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, रिस्पॉन्सिबिलिस्ट। अच्छा Vimli was smiling a lot and laughing a lot. Any personal experience, Vimli? Girl psychology ना, हाँ ना, that is very much true यार, है ना, है ना। हाँ, they are not okay. And if some other girl's boyfriend has basically क्या arranged those are the firecracker outside the girls hostel, ठीक, so she is basically expecting that you have to do
more than that. ठीक, because you prove to be a better boyfriend, है ना तो है ना रॉकेट लगा के फोड़ दो, है ना. ठीक. रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चीज याद रखना, दैट दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो के एडवोकेटेड फॉर हिंदू इंटरेस्ट्स. हिंदू इंटरेस्ट, गुड ओल्ड कॉलेज मेमोरीज यार, मजा आ गया था. हिंदू इंटरेस्ट. अच्छा, इसमें एग्जांपल लिख लेना, राइट डाउन फ्यू ऑफ द एग्जांपल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिस्ट. LMN, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय एंड NC केलकर. हिंदू इंटरेस्ट, दे वर बेसिकली सेइंग एवरीथिंग रिगार्डिंग क्या, हिंदूज. ठीक, हिंदूज के लिए दिस ऑफ द थिंग शुड बी हैपनिंग जस्ट लाइक अवर के बीजेपी एट दैट इन दिस टाइम. ठीक है, वो क्या थे, हिंदू इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सर्टेन ऑफ द मुस्लिम सेक्शन आल्सो गॉट ऑफेंडेड बाय दैट. LMN, दैट इज लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय एंड NC केलकर. These are the people were basically a responsivist. क्या थे, कुछ responsivist that you basically have to remember. क्या, NC केलकर. यार, I'm improving my handwriting day by day, Shavanya. Don't be so harsh on me. हाँ, अच्छी है. Thanks कोमल यार, है ना. Thanks कोमल, thanks कंचन. पूरा नाम क्या है तेरा? कंचन सचान, है ना. आज से मैं तेरा, है ना, संचन नहीं, कंचन सचान. शिनचैन नहीं बोल रही हो. शिनचैन नहीं बोल रही हो. ठीक, ओके. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट ऑफ द हेडिंग. यू प्लीज राइट डाउन क्या, साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट. साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट. हाँ, कल ही कराऊंगा मैं, बस हेडिंग लिख पा रहा हूँ. साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट. After Nehru report, we will be discussing regarding the civil disobedience movement after Quit India movement, and after that everything is over. ठीक. This Simon Commission and Nehru report will be doing in the next class. Next class. ठीक. Enjoyed the class, Emily? Huh? My class is always Vimili, always pure, है ना, pure straight from the heart, है ना. No dirty jokes. ऑलवेज क्या, ऑलवेज प्योर, है ना. तुम लोग निकाल लेते हो कुछ, है ना, ऊट पटांग मेरी क्लास से, लेकिन मैं यार हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ. तुम दो हाँ. अच्छा हाँ, नहीं आज की क्लास में तुम दो, लेकिन पीछे को देख के नहीं यार, लेकिन यार आई रियली लाइक दैट, है ना, मुझे अच्छा लगता है. हाँ, कल का क्लास नहीं, सैटरडे का क्लास. कल का क्लास, कल का चेंज किया क्या उन्होंने टाइम? कल का क्लास तो पहले भी यही टाइम था, पहले भी यही था. देखना, ये अगले वीक का टाइम टेबल होगा मेरे ख्याल से. पहले से यही टाइम था. पिछली बार भी 1:45 ही आया था. इस वीक का जो पिछले वीक आपको पास टाइम टेबल शेयर हुआ था, उस टाइम भी 1:45 ही था. चलो ठीक है, अगले वीक का नहीं आया तो ठीक है. तो ठीक है, ऐसा करते हैं ना, आपका 40 मिनट्स का टेस्ट होगा. आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग 20 मिनट्स का डिस्कशन ऑन दैट टेस्ट, एंड आफ्टर दैट आपका क्लास ले लेंगे. हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ भी लेना कल. आफ्टर द टेस्ट वी विल बी हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टडी एज वेल. अरे वो करंट अफेयर वो क्लास नहीं मान रही. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. एक ही क्लास है. ठीक है. अच्छा, ये वाला टाइम टेबल जो कल की क्लास का है, पहले भी आपके साथ शेयर हो चुका है ना. 11 तो कल 2.25 घंटे की क्लास है, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं. ठीक, तो पहले टेस्ट होगा, फिर आपका डिस्कशन होगा 20 मिनट का. आफ्टर दैट विल बी हैविंग आई विल गिव यू 5 to 7 मिनट ब्रेक. उसके बाद 1-1.25 घंटे की आपकी क्लास ले लेंगे. लेट अस एंड द क्लास. जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
मेरी क्लास देखते रहिए। ब्लश 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 बाय यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज अ गेम ऑफ EQ। चलो बाय बाय बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एज वेल, बाय।